We can start the session. Yeah. So quickly, I'll go through the presentation. Yeah. Okay. So is this visible? Yes, sir. It is visible to all. Yes. Yeah. So good morning, all of you. I'll just have a quick idea of what we are going through in this process for next 1 hour or 1.5 hours. पत्रिका साहब थोड़ा आपको इंटरप्ट करता हूँ जी। ये मैनेजर यस सर कोरे यस सर बोलिए सर check the attendance of everybody who are not attending now. Because this is very important lecture. Yesterday was important. Who are not attending the lecture now? Yes. We should report RIC properly. Okay. They are not attending. They should not be माने उनको आगे बढ़ाने का नहीं है हम. यस सर यस सर. संडे हम लोग कर रहे हैं और पत्रिका साहब का टाइम ले रहे हैं. यदि if they are very much casual, we will not allow them to henceforth. क्लियर मैसेज दो मेरा तरफ से, क्लियर मैसेज दो. यस सर, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ सर. जैसे अभी एट द एंड ऑफ द सेशन में हमें ग्रुप पे ऐड करता हूँ कौन कौन एब्सेंट था, तो वैसे हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे सर. ये एक्शन नहीं लेने का, उनको डायरेक्ट रिमूव कर देने का यहाँ से. एक्शन क्या लेंगे हम लोग? हाँ यस सर यस सर यस नोटेड सर. तो नेक्स्ट क्वार्टर में तुम अप्लाई करो. एक क्वार्टर में तुम कंसीडर नहीं किया जाएगा. प्लीज एवरीवन शुड लिसन टू माय मैसेज. सभी को बोल दो, जो आर अटेंड ना, सभी को बोल दो. नेक्स्ट टाइम I will not allow them. Okay. Yes sir, yes sir. सबको एक मैसेज भी कर. Okay. Yes. Okay. Yes, Vikram sir, we can begin. Yeah. So to start with, good morning all, and I think all we are comfortable to have a conversation in English or Hindi. Somewhere it is required, we go switch to both the language. So to start with, let me introduce my experience, my exposure, and the skills that has been I have acquired since last 16 years. So my name is Vikram Patrikar. I'm BTech Food Technologist. Basically, I have 16 years of experience in some of the known and some of the unknown organizations. However, on the front of all this aspect, I work with a lot of quality assurance, quality control, quality systems, quality development, all the quality modules that is available in the industry. I go through that all modules. Along with that, there is some regulations and regulatory aspect which I cover in a multiple organization, wherein I get a lot of experience and exposures towards a lot of changes, lot of compliances issue, and I help many of the people to get their licenses, get their compliances correctly, and to have a very adequate system in a very systematic way. So I work with the General Mills, Capital Food. All these experiences explained well in my introduction by T. Now, just have an understanding that this regulations comes into the picture. So this is the general timeline in food industry, which wherein committee is appointed for this health board. So we identify that the food is a very normal and common things which is consumed by everybody. So this is affecting your health. It's always now this is a health freak generation, wherein people are also well known that how important food in your health. Okay, so the means government has appointed some central bodies in 1937. Then it had observed that there are a lot of malfunction practices which is happening, and now they want to control
very adequately. So by doing so, they start doing the adulteration issues are very high. So in 1955, the Prevention of Food Adulteration Bill is passed, wherein whatever the adulteration is identified, how we are going to control, how we are going to regulate that all things are being covered in this aspect. Then there is a big switch from there. We are using very old system since 1955. Then government has decided to have some more legislative requirements. So more legislative requirements consist of there are some comprehensive legislation is required. So there is a group is formed which gives the comprehensive understanding and layout of legislation how we are going further. So in 2004, this there are some challenges. There are every time the food has its we can't understand food at this point of time. We can't say that we know 100% what food is. So this has been identified in long back in 2004. So there they understand there are some pesticides and all these are used, which is also impacting the health of the human body. So then they start some of the committees and all this, and then it moves to the standard committee in the parliament, which in 2005, whatever the report from the 2004, they moved to the standard committee of parliament for agriculture submission for integrated food laws. So these food laws are very comprehensive, very details, and to be honest, it is a very big switch from the whatever in the past we are doing. Then in 2005, Law Commission was asked to give its views, and that views are very clear that this is very insightful and help to many living beings. So they decided to move further to pass the bill and clear that these regulations to be imposed and to be used by the Indian regulations. In 2006, it is when it is passed. This has a framework, and further detailing is required to have a correction with the other food industry, means other countries' food industries laws. And then finally, in 2006, the FSSAI is formed. That everybody is aware about what is the FSSAI is the Food Safety and Standard Authority of India. Now, coming back to this, what is the shift that we see in FSSAI? So, FSSAI is a very, very, very comprehensive. When I'm talking about the comprehensive, I'm talking about there are multiple laws and multiple rules and regulations which need to be followed, and it is very, very much what happening is there are multiple. Some laws is saying something and some laws are telling something. So FSSAI, what FSSAI do is they club each and every aspect of the industry. They sorted out what common things are, what special things are, and now the final sorry. सर हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी में. ओके सी इससे पहले चालू करूं या स्टार्ट फ्रॉम हियर, मींस यहां से चलेगा? यहाँ से चलेगा, यहाँ से कर दीजिए, यहाँ से चलेगा. चलो जी, क्या हो रहा था कि बहुत सारी चीज में इशू कैसे आ रहा था कि हमें अलग अलग लॉज और रेगुलेशंस हमें देखने पड़ते थे. कि जैसे अगर मुझे मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क के लिए मुझे अलग लॉ कंप्लाई करना पड़ता था, और मुझे मिल्क के साथ अगर मुझे कोई और दूसरा बिजनेस वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग मुझे करना है, तो मुझे बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल का भी लाइसेंस लेना पड़ता था, फ्रूट प्रोडक्ट का भी लाइसेंस लेना पड़ता था. मीन्स वॉट एवर इट इज, मीन्स मैं जो कुछ भी आगे कर रहा हूँ, तो मुझे बिजनेस बढ़ाने के लिए ये बहुत सारे थ्रेड्स है.
और ये थ्रेड्स को हमने एडिक्वेटली हैंडल किया, और हमने देखा कि इसमें क्या है कि हम एक ही लॉ बनाए जो एफएसएसआई की सिंगल गवर्निंग बॉडी हो और सिंगल लाइसेंस आपके हर बिजनेस सॉल्यूशन को प्रपोज करे। और ये डेफिनेटली अगर मैं फूड इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो ये बहुत ही अच्छा स्विच था, क्योंकि देर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लोगों को कंफ्यूज करने वाली थी कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे अलग से कौन सा लाइसेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और इसके वजह से जो फूड बिजनेस ऑपरेटर जो होते हैं, जो फूड बिजनेस चलाते हैं, उनको भी जो प्रॉब्लम्स आते थे वो प्रॉब्लम्स ये वे से हमने गवर्नमेंट ने स्विच करके एक सिंगल स्टैंडर्ड बनाया है जिसको हम एफएसएसआई कहते हैं। नाउ कमिंग बैक टू एफएसएसआई, कि हम एफएसएसआई में क्या करते हैं जनरली ना, देयर आर वेरी मच मिसकंसेप्ट अबाउट कि हम एक्ट रूल्स और रेगुलेशन को ना हम बहुत ज्यादा क्लब करते हैं, जिसका अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस फूड इंडस्ट्री आप देखते हो तो बहुत ही वियर्ड है, क्योंकि लोगों को इस सब चीज का अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ पे एप्लीकेशन में यूज होता है। सो बेसिकली जब हम एफएसएसआई एक्ट बोलते हैं तो एफएसएसआई एक्ट 2006 में पास हुआ, जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया टाइमलाइन में, कि जब ये एक्ट हम पास कर रहे थे तो ये एक्ट कैसे पास हुआ था कि कंसोलिडेशन ऑफ सब लॉज जो है हम उसको हमने एक ही जगह पे लेके आए। देन उसको हमने साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड हमें करने चाहिए या साइंस बेस्ड रहना चाहिए कि हमें कौन सी चीज को रेफरेंस लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी रेगुलेशन बनाना है तो ऐसे वियर्ड या वेग रेगुलेशन हम नहीं बना सकते हैं। हम रेगुलेशन हमें बनाना है तो उसको कुछ ना कुछ एक बेस होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए, जो हम साइंस बेस्ड लॉजिक थ्रू इसको करते हैं। तीसरी चीज जो आती है कि ये कहाँ कहाँ पे उन्होंने एक्ट में बहुत खूबसूरती से उन्होंने उसका स्कोप डिफाइन किया है कि हम कहाँ से लेके कहाँ तक हम जा सकते हैं, कि हम बेसिक हम अभी जो रेगुलेशंस है वो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से लेके आपके फाइनल प्रोडक्ट तक, जो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास जाता है वहां तक उसको हम कैसे लेके जाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। क्योंकि अगर हम स्कोप डिफाइन नहीं करते तो हमें अभी तक जो पुरानी सिचुएशन थी कि हम सिर्फ जो फूड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको ही ब्लेम करते थे, बट इसमें सिर्फ फूड मैन्युफैक्चरिंग ही डिपेंडेंट नहीं है। जैसे मैं कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एग्जांपल के लिए लेता हूँ, कि कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसमें आपको पेस्टिसाइड्स है और वो पेस्टिसाइड वाला प्रोडक्ट आपको खिलाया जाए, भले ही वो एग्रीकल्चर से आ रहा है, बट मैन्युफैक्चरर, अगर आप और मैं जैसे मैन्युफैक्चरर है तो वो मैन्युफैक्चरर जिस तरीके से उसको प्रोसेस कर रहा है वो प्रोसेस उसमें कोई वैल्यू ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो रेसिड्यू प्रोडक्ट के अंदर ही है। सो वो ऑलवेज क्या था कि फूड बिजनेस ऑपरेटर इस सब चीज में ट्रबल में आते थे और उनके प्रिकॉशनरी मेजर्स भी कम पड़ते थे। सो दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल वैल्यू चेन इन द फूड इंडस्ट्री। ओके, उसके बाद है कि जो इसमें एक्ट में और एक चीज हमने कंसिडर की है कि हमें मेन कोर एरिया क्या है, कि हमें सेफ प्रोडक्ट देना है। अब जब सेफ की बात करते हैं ये फूड सेफ्टी के रिलेटेड होता है। फूड सेफ्टी जनरली क्या होता है कि कोई भी फूड हम खाते हैं तो उसके वजह से हमें ना इंजरी हो, ना इलनेस हो, या ना हम बीमार पड़े, या उसके खाने से हमें हमारे बॉडी में कुछ इम्पैक्ट ना हो, उसको हम फूड सेफ बोलते हैं। और होलसम फूड जब हम बात करते हैं तो हम हमारे ऑलवेज, आपने बहुत सारी जगह पे या बहुत सारे सोशल मीडिया में भी आपने सुना होगा कि होलसम फूड ऐसा होता है कि जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स हमें मिले। और ये एक्ट उसको भी कंसोलिडेट करता है कि आपको किस तरीके से ये सब प्रोडक्ट आपको सेफली आपके पास डिलीवर। जब हम ये एक्ट कर रहे थे तो हमें जब ये सब एक्ट को हमें
अभी इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो इम्प्लीमेंटेशन हमें कैसे करना है, इसके लिए भी बहुत ही डिटेल, बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग हम किस किस वे से करेंगे, ये हमने डिफाइन किया हुआ है। और ये एफएसएसआई ने डिफाइन किया है, और ये एफएसएसआई डिफाइन किस के फॉर्म में करता है, दैट इज एफएसएसआई रूल्स, दैट इज एफएसएसआई रूल 2011। अब ये 5 साल हमें लगे कि उसको हम किस तरीके से रूल्स और रेगुलेशन में लाए, सो दैट हम उसको कंप्लाई, फूड बिजनेस ऑपरेटर कंप्लाई करवाए। अब जब रूल्स बनाने हैं, तो रूल्स बनाने के लिए हमें चैलेंजेस ये थे कि हमें कैसे करना है, व्हाट टू बी डन। सो रूल हमें बताता है कि हमें क्या चीज करनी है, कैसे चीज करनी है, और किस वे से करनी है। जैसे कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर किसी स्टोर को विजिट करता है, तो उसकी मनमानी ना चले, और वो कोई भी प्रोडक्ट लेके जाए, और उसके वजह से कोई लोगों को, फूड बिजनेस ऑपरेटर है या लोगों को उस चीज से परेशानी ना हो कि वो किस तरीके से, कौन से फॉर्मेट वो देना चाहिए, कैसे देनी चाहिए, ये रूल्स में बताया गया है। अगर कोई फूड प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड मिलता है, या कोई फूड प्रोडक्ट जिसमें इशू हमें आइडेंटिफाई होता है, तो उसको भी किस क्लॉज के अंडर क्या देना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड मेमो कहते हैं उसको। अगर वो हम दे रहे हैं, तो कोई भी रैंडम में से कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर आके आपको ये नहीं बोल सकता कि आपका प्रोडक्ट खराब है और आपको मैं पेनल्टी लगा सकता हूँ, आपको आपको इतना पेनल्टी देना है। सो फूड बिजनेस ऑपरेटर को ये क्लियर है कि अगर मुझे मेमो आ रहा है, तो ये फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो दे हैव वेरी लीगल राइट्स कि उस मेमो को डिनायल आप कर सकते हो। अगर वो स्टैंडर्ड मेमो आता है, तो देर आर सर्टेन वेज, जो रेगुलेशंस में मैं आगे कवर करूंगा कि हम उसको किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। रूल्स में भी क्लियरली बोला है कि हम उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अगर मेरा प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड पाया जाता है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरा प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड पाया जाता है, तो मुझे कितनी पेनल्टीज लगेगी। जैसे ये समझने के लिए हमारा जो नॉर्मल कॉमन एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे हम ट्रैफिक में जाते हैं, तो हमने हेलमेट नहीं पहना है, तो हमें एक 500 रुपए का पेनल्टी मिलता है, या हमारे पास कुछ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड पेनल्टीज का स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। तो एफएसएसआई ने भी, अगर फूड प्रोडक्ट मेरा वैसा नहीं है, तो किस तरीके की पेनल्टीज हो सकती है, उसको भी यहाँ पे रूल्स में उन्होंने बताया। फिर नोटिसेस मीन्स, अगर 2-3 टाइप की नोटिसेस होती है जो किस वे से और किस रीजन की वजह से देने चाहिए। एक नोटिस होती है कि इंटीमेशन नोटिस। इंटीमेशन नोटिस क्या होता है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो मार्केट से कलेक्ट किया जाता है, वो नोटिसेस होते हैं। उसके बाद जो आता है इम्प्रूवमेंट नोटिस। अगर आपका प्रोडक्ट फेल होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है, और उसमें कोई कोई सेक्शंस है जिस सेक्शंस में आपको इम्प्रूवमेंट नोटिस मिलती है, कि जैसे आपके लेबलिंग कंप्लायंसेस ठीक नहीं है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है बट आपके लेबलिंग कंप्लायंसेस ठीक नहीं है, तो इस केस में आपको एक इम्प्रूवमेंट नोटिस मिलता है कि आपको ये ठीक करवा लो। मीन्स ऐसा, आप एक टाइम फ्रेम हमें सबमिट कीजिए, कि जो फ्रेम में आप ये काम करेंगे। ये ऐसे टाइप की जो नोटिसेस है, और उसको हमें रिस्पॉन्स करना पड़ता है, और वो भी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में उनको रिस्पॉन्स करना पड़ता है। अभी ये सब जो नोटिसेस है ना, ये उन्होंने फोस्कॉस फोकस फोस्कॉस, बाहेर सॉरी। Yes, sir. Sorry, someone's mic was unmute. Please continue. ओके, ओके, तो ये जो नोटिसेस है, इसको किस तरीके से डायरेक्ट करना है, इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंट पोर्टल थ्रू फोस्कॉस सिस्टम उन्होंने किया हुआ है। एंड उसके बाद जो होता है कि पैनलाइजिंग नोटिसेस। पैनलाइजिंग नोटिसेस मीन्स आपका जो कुछ भी आपका प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड मिला है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो पेनल्टीज में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपको पे करने का नोटिसेस आता है। ये फॉर्म अभी करंटली जो नोटिसेस सिस्टम्स है, वो दोनों वे से चलता है। एक तो आपका पोर्टल थ्रू भी चलता है, और ऑफलाइन पेपर वर्क थ्रू भी चलता है।
जब अभी हमारा एक्ट बन गया, हम अभी उसको रूल्स के थ्रू फॉर्म में लेके आए, तो फिर हमें उसको एक स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि कौन सी चीज को हम क्या स्टैंडर्ड्स कहेंगे। ये सब स्टैंडर्ड हम रेगुलेशन में देखते हैं कि अलग अलग टेस्टिंग के स्टैंडर्ड मीन्स प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड होते हैं, प्रोसेस के स्टैंडर्ड्स होते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, टेस्टिंग एंड लेबोरेटरी जो होती है उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, पैकेजिंग कैसे होना चाहिए और उसका किस तरीके से लेबलिंग कंप्लायंसेस होने चाहिए, उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं। एंड ऑल जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट है, ऑल प्रोडक्ट को हम कवर करते हैं ये स्टैंडर्ड्स थ्रू, कि ये स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। जब अभी हमने जिस तरीके से डिस्कस किया कि रूल्स में हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि किस टाइप का हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, किस टाइम के क्या होते हैं। और ये जो फॉर्म नंबर है, ये फॉर्म नंबर बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर्स होते हैं। इसमें कोई भी चीजें चेंज नहीं की जाती है। अभी जैसे फॉर्म नंबर 1 है, एफिडेविट होता है कि सीजिंग बुक ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है और उसको हमें क्लियरली देर इज अ क्लोजिंग नोटिस एंड ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग, तो उसको किस तरीके से हम सीजिंग कर रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। देन सीजिंग मेमो भी होता है कि जो कुछ भी आपका सीज किया है वो किस तरीके से सीज किया है, क्या क्या चीजें उसमें कवर की है, दैट ऑल सीजिंग मेमो इज ऑल्सो देयर। देन फॉर्म 3 जो होता है सीजिंग ऑर्डर ऑफ सीजिंग, किस तरीके से ऑर्डर आती है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है और उसके ऊपर कौन किसका साइन होना चाहिए। कभी कभी आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर से अगर आता है फॉर्म नंबर 3 और उसका अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर का उसके ऊपर साइन है तो इट इज नॉट वैलिड। सो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पे रूल्स में क्लियर कट बताया है। देन फॉर्म नंबर 4 होता है जो सिक्योरिटी बॉन्ड्स, जो कुछ भी इसके सिक्योरिटी बॉन्ड्स जो इश्यूज होते हैं वो कैसे किस तरीके से होंगे क्या होंगे, उसका भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। फॉर्म ऑफ नोटिस टू द फूड बिजनेस ऑपरेटर, किस तरीके से के नोटिस और उसके किस अलग अलग फॉर्म्स जो है वो इसमें डिफाइन किया हुआ है। फॉर्म नंबर 6 जो होता है मेमोरेंडम ऑफ फूड एनालिस्ट। अब आपका फूड प्रोडक्ट सीज किया हुआ है और वो फूड प्रोडक्ट किसी फूड एनालिसिस करने के लिए किसी लैब में दिया हुआ है या किसी जगह दिया हुआ है, तो ये किस वे से उसको सीज होना चाहिए, इसका मेमोरेंडम क्या होना चाहिए, क्या चीजें टेस्ट करनी चाहिए बाय फूड एनालिस्ट, ये सब उस फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। उसके बाद आता है फॉर्म नंबर 7, रिपोर्ट ऑफ द फूड एनालिस्ट, की जो ये अभी सैंपल और सीज किया है उसका एनालिसिस किया है उसका रिपोर्ट हमें कैसे आना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें कवर होनी चाहिए, ये फॉर्म नंबर 7 में ब्रीफ किया जाता है। फॉर्म नंबर 8 में जब हम जाते हैं कि अम, आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है एज अ फूड बिजनेस ऑपरेटर आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर लगता है कि ये थोड़ा सा गलत है या इसका मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है और आपके पास साइंटिफिक लिटरेचर है कि यू आर करेक्ट ऑन द फ्रंट जहाँ पे आपको नोटिस आए हुए, देन यू कैन ऑफर दिस टू द डेजिग्नेटेड ऑफिसर। सो डेजिग्नेटेड ऑफिसर इज, ये बहुत ही बड़ा पोजीशन होता है जो हर स्टेट के लिए या कभी कभी 2 स्टेट के लिए या रीजन के लिए उसको असाइन किया जाता है। तो ही कैन रिव्यू ऑल दिस एस्पेक्ट, साइंटिफिक लिटरेचर आपका स्टडी करेंगे और सब कुछ करके अगर आपको कुछ इश्यूज नहीं है तो फिर उनको क्लीन चिट भी फूड डेजिग्नेटेड ऑफिसर आपको दे सकता है। सो डेजिग्नेटेड ऑफिसर का भी बड़ा रोल होता है ये सब चीज में। देन फॉर्म 9 जो होता है फॉर्म ऑफ नॉमिनेशन, जो नॉमिनेशन जब हम कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर चलाते हैं तो अगर इस सब चीज में कोई केसेस आपके अगेंस्ट आते हैं कि आपका फूड प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड है, तो कंपनी की पूरे कंपनी को हम नहीं उसको परेशान करते। द पर्सन हु इज नॉमिनेटेड
जनरली ये नॉमिनेटेड पर्सन एक साइंस बैकग्राउंड का होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन उसका बीएससी होना चाहिए। और बीएससी अभी जो है, पहले क्या था कि जो शेफ वगैरह थे उनको भी हम नॉमिनेट कर सकते थे, बट अभी इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है कि एक पार्ट जो होता है जो होटल एंड रेस्टोरेंट्स है उसमें आप शेफ को नॉमिनेट कर सकते हो, बट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो आपको जो टेक्निकल इंडिविजुअल है, बीएससी है, बीटेक है, या फूड टेक्नोलॉजिस्ट के जो लोग हैं उनको ही आप नॉमिनेट कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल्स। मीन्स वो फैक्ट्री मैनेजर ही लेवल होना चाहिए या वो कोई डायरेक्टर लेवल होना चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है इस। जब फॉर्म 10 की बात करते हैं, फॉर्म ऑफ अपील्स ट्रिब्यूनल, मीन्स आपका अगर कोई सबस्टैंडर्ड फूड सेफ्टी में पाया गया है, आप उसको और उसके आगे किस तरीके से स्ट्रक्चर थ्रू उसको आगे चैलेंज कर सकते हो, ये फॉर्म 10 में डिफाइन किया है। और ये सब जो फॉर्म्स है उसको किस तरीके से ऑपरेट करना है ये सब जो है आपके प्रोसेस में, रूल्स में क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि किसका क्या रोल है, फूड बिजनेस ऑपरेटर का क्या रोल है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल है, या डेजिग्नेटेड ऑफिसर का क्या रोल है, असिस्टेंट डायरेक्टर का क्या रोल है, डायरेक्टर का क्या रोल है, ऑल इज डिफाइंड। उनका रिक्रूटमेंट कैसे होना चाहिए, उनके क्वालिफिकेशंस कैसे होने चाहिए, ये सब चीज जो है इसमें बताया गया है रूल्स। जब अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो डे डे इन डे आउट में फूड बिजनेस ऑपरेटर को पता होनी चाहिए, इज अ रेगुलेशन। सो ये रेगुलेशन जो है ना, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आपका फूड बिजनेस को मुझे लाइसेंस करना जरूरी है। तो लाइसेंसिंग मेरा कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब जो है, ये यहाँ पे हमें जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फूड बिजनेस लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस अब कौन से कैसे होने चाहिए, मैं आगे उसको ब्रीफ करूंगा कि कौन सा सेंट्रल लाइसेंस में जाना चाहिए, कौन सा स्टेट लाइसेंस में जाना चाहिए, स्टेट लाइसेंस में जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस है, उसके फीस कैसे होंगी, कि लाइसेंस की फीस कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कितना बिजनेस है। मीन्स मैं अगर 1 लाख का बिजनेस कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे 7,500 रुपये पे करना जरूरी है या नहीं है। अगर मेरा बिजनेस 1 करोड़ का है तो मुझे कितना पे करना चाहिए, या मेरा बिजनेस 2 मेट्रिक टन के ऊपर है तो मुझे कैसे करना चाहिए। सो ये सब जो चीजें हैं, द बिजनेस फिजिबिलिटी, यहाँ पे हमने कंसिडर, एफएसएसआई ने कंसिडर करके ये सब चीजों को कंसोलिडेट करके यहाँ का एक लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रूल किया है। इसमें दो पार्ट आते हैं। लाइसेंसिंग मीन्स जो बिजनेस ऑपरेटर जनरली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या कुछ होटल चेन्स है, उनको लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और रजिस्ट्रेशन जो है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, सब लोगों को जो पता है पानी पूरी वगैरह ऐसी जो चीजें हम स्टॉल्स पे लेते हैं, उस चीज में भी उनको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी। अब उसके बाद जो रूल्स एंड रेगुलेशन आता है, दैट इज अ फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स। अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो मेरा जो प्रोडक्ट जो है वो कौन सा फूड प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से है, और उसके अंदर मुझे क्या एडिटिव्स डालने हैं और क्या नहीं डालना है, ये इसको रेगुलराइज करता है। ये पूरा आपके फूड प्रोडक्ट को सेफ बनाने की कोशिश होती है। जो जनरली हम कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, जैसे मैं पानी पूरी बना रहा हूँ तो दो वे से होता है कि जब मेरा ये फूड प्रोडक्ट जो है वो पानी पूरी की कैटेगरीज में आता है या नहीं, उसका कुछ स्टैंडर्ड है या नहीं, या कुछ उसके ऊपर मेरा क्या होना चाहिए। तो ये ऑल दिस, जो मैदा आप यूज कर रहे हो या सूजी आप यूज कर रहे हो, तो वो सूजी भी आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है या नहीं। आप वाटर यूज कर रहे हो तो वो वाटर भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है या नहीं, क्योंकि आप देखोगे कि पानी पूरी में जनरली पानी जो यूज किया जाता है, तो बहुत सारे मिथ्स है कि मीन्स बहुत सारी जगह पे प्रैक्टिसेस भी होता है, मिथ नहीं बोल सकते, कि
कहीं से भी पानी ले लिया और उसका पानीपुरी में अपने पानीपुरी बना ली, तो वो डेफिनेटली प्रोडक्ट आपका सब स्टैंडर्ड हो जाता है, जो कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं होता है। उसके बाद जो आता है कि कौन से प्रोडक्ट बेचने चाहिए और कौन से प्रोडक्ट नहीं बेचने चाहिए, दैट कवर्स अंडर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल्स। कौन से प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं, खाना मीन्स फूड, एज अ फूड हम किसको बेच सकते हैं और क्या बेच नहीं सकते। इसमें हम उसमें स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि कौन से प्रोडक्ट बेच सकते हैं और कौन से नहीं बेच सकते हैं। अगर हमने फूड बेच रहे हैं तो उसका नेक्स्ट रेगुलेशन आता है कंटेमिनेशन, टॉक्सिन एंड रेसिड्यू। अब जब हम बहुत सारी चीजों में सुनते हैं कि पेस्टिसाइड्स है, कंटामिनेंट्स है, कंटामिनेंट्स मीन्स जस्ट टेक अ एग्जांपल ऑफ मैगी की जिसमें लीड पाया गया था। तो ये जो सब चीजें हैं वो कंटामिनेंट्स होते हैं। टॉक्सिन्स जो होते हैं जैसे माइकोटॉक्सिन्स होता है, ऐसे जो टॉक्सिन्स है, मेलामिन होता है जो आपको इमीडिएट कंजम्पशन के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, बट लॉन्ग टाइम कंजम्पशन के बाद आपको इम्पैक्ट कर सकता है, दैट कॉल्ड्स टॉक्सिन्स। तो वो कौन से टॉक्सिन्स नहीं होने चाहिए। और इसमें आपको जो नॉनवेज और ये मीट और मीट प्रोडक्ट्स है या फिश एंड फिश प्रोडक्ट है, उसमें कुछ स्टेरॉइड दिए जाते हैं सो दैट दे लुक हेल्दी, एंड उसको बेच के उनको प्रॉफिटेबिलिटी आ सकता है। ऐसे जो एंटी बॉडीज जो डाले जाते हैं उसको भी इस टॉक्सिन के प्रोफाइल में कौन से होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ये उसमें कवर करता है। और रेसिड्यूज, जो पेस्टिसाइड रेसिड्यूज जो होते हैं, कितने लेवल तक अलाउड है और कितने लेवल तक अलाउड है, जब हम बोलते हैं तो इसका साइंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग होता है कि इतना इम्पैक्ट हमें नहीं होगा, या कितना कंजम्पशन के बाद हमें लॉन्ग भी कंजम्पशन है तो हमें इम्पैक्ट नहीं होगा। उसके बाद आता है आई जस्ट गो टू द लेबोरेटरी एंड सैम्पलिंग। कौन से लैब में टेस्ट करना चाहिए। अगर आप देखोगे तो अभी देर आर लॉट ऑफ लेबोरेटरीज अक्रॉस इंडिया। सो कौन से लैब में मेरा टेस्टिंग होना चाहिए। सो बेसिक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो एफएसएसआई ने अभी इम्पोज किया हुआ है कि आपका फर्स्ट इज एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब होना चाहिए। सेकेंडली एफएसएसआई अप्रूव्ड लैब होना चाहिए। अब जब ये अप्रूवल प्रोसेस के थ्रू जाते हैं तो इट इज वेरी टीडियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट एवर रिजल्ट इज दे आर गिविंग, कि वो बहुत ही ज्यादा करेक्ट हो। सो ये इसको नोटिफिकेशन भी जारी किया जाता है कि कौन से लैब अप्रूव्ड है, कौन से लैब अप्रूव्ड नहीं है, और किस तरीके से इस स्टैंडर्ड की जो एनेक्शंस रहते हैं वो डे मीन्स रेगुलरली आपको पब्लिश करता है। Then we have a health supplement, nutraceutical, food and specially dietary use, food for special medical purpose, functional food, novel food। अब ये जो सब प्रोडक्ट है, मैं इसमें बहुत सारा अपने न्यूट्रोसिटिकल पता होगा, बेबी फूड्स अपने समझे होंगे, पता होंगे। नॉवेल फूड्स क्या होते हैं, जैसे आपका समोसा है। समोसा क्या है कि आपका एक प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बनता है। ओके, सो अगर ये इंडिया में बन के बाहर के देश में भेजा जाता है, सो ऐसे भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो समोसा इज ए एग्जाम्पल, इट इज नॉट लाइक अ नॉवल फूड, बट ऐसे जो स्पेशल नॉवल फूड्स होते हैं, जैसे हमारे आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन होते हैं या आयुर्वेदिक कोई फूड्स होते हैं कि ये खाने से अच्छा होता है। अभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है मार्केट में। सो वो भी प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए और उसको क्या होना चाहिए, ये रेगुलेशन में कवर किया हुआ। नेक्स्ट हम जाते हैं फूड रिकॉल प्रोसीजर। अगर आपका फूड प्रोडक्ट खराब है, सो ये फूड प्रोडक्ट को आपको वापस बुलाना है, तो किस तरीके से आपको वापस बुलाना है, किन किन अथॉरिटीज को बताना है, किन लोगों को इन्फॉर्म करना है, प्रेस में आपको क्या चीजें करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, ये सबको जो डिफाइन किया जाता है, उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, वो फूड रिकॉल प्रोसीजर में कवर किया जाता है। एफएसएसआई स्टैंडर्ड इंपोर्ट प्रोडक्ट के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट इंडिया में लाके बेच रहे हो। तो
इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इंडिया में अभी तक जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड अलाउड नहीं है। इवन अगर हम ऑयल की बात करते हैं तो कॉटन सीड ऑयल जो है आपका जेनेटिकल मॉडिफाइड जो सीड्स होते हैं बीटी कॉटन के थ्रू इसको किया जाता है। तो ये जो चीज है ये इंडिया में अलाउड नहीं है। अब हम जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उस ऑयल को हमारे स्पेसिफिक स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड में हमने कवर किया हुआ है और इसको एडिक्वेटली हम मॉनिटर करते हैं थ्रू दिस प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स टेस्टिंग और बहुत सारे मेथड्स है जिससे थ्रू मेजर करते हैं। सो दीज इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस और उसके स्टैंडर्ड्स क्या है ये सब इसमें डिफाइन किया है। अभी कुछ अप्रूवल ऑफ नॉन स्पेसिफिक फूड्स मीन्स जो नहीं किए हैं कि हमने जो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड जब हम बात करते हैं तो उसमें जो हमने डिफाइन नहीं किया है ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो नॉन स्पेसिफाइड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी अप्रूवल का प्रोसेस किस तरीके से फॉलो होना चाहिए उसका भी स्टैंडर्ड्स दिए हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक फूड किस तरीके से होना चाहिए उसका क्या रेगुलेशन हो हम कब उसको ऑर्गेनिक फूड बोल सकते हैं उसमें इसका भी स्टैंडर्ड दिया हुआ है। अल्कोहलिक बिवरेजेस जो है वो किस तरीके से किस प्रोडक्ट को हम अल्कोहलिक बिवरेजेस बोल सकते हैं उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है क्या कौन से लेवल्स पे उसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। ये बहुत सारी अल्कोहल इंडस्ट्री में बहुत सारे डिबेट्स है फिर भी ये रेगुलेशन बहुत स्ट्रांगली इस चीज को डिफेंड करता है कि व्हाट आर दिस साइंटिफिक लिटरेचर ये उसको डिफेंड करता है। उसके बाद आता है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। अगर फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो इट इज बेस्ट क्लासिकल एग्जांपल आप आपके घर में ऑयल देखते हो तो ऑयल में एक फोर्टिफाइड बाय एडीएच करके मेंशन किया होता है जो न्यूट्रिशन आप जो प्रोडक्ट है उसका न्यूट्रिशन इंप्रूव करने के लिए या जो ऑयल में जैसे लॉस होता है प्रोसेस में वो लॉस को रिकवर करने के लिए जो एडिशनल फोर्टिफिकेशन मीन्स एडिशनल न्यूट्रिशन हम डालते हैं दैट ऑल कम्स अंडर द फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड। वो कैसे होना चाहिए अगर है तो उसको किस तरीके से डिक्लेयर होना चाहिए। आप अगर आपको रेफरेंस के लिए देखना है तो आपका जो ऑयल का प्रोडक्ट है उसका लेबल आप चेक कर सकते हो जिसमें फोर्टिफिकेशन आपको डेफिनेटली दिखाई देगा। अगर उसमें एडी फोर्टिफिकेशन किया या एडीएच फोर्टिफिकेशन किया वॉट एवर इट इज फोर्टिफाइड वो वहां पे डिक्लेयर करने की जरूरत है और हमारी ऑयल इंडस्ट्री सब जगह पे ये डिक्लेयर करती है। अब ये सब के बाद हम जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है उस ऑपरेटर को किस वे से ऑडिट होगा किस वे से उसको वेरिफिकेशन सिस्टम होगा क्या वेरिफिकेशन सिस्टम होगा ये पूरा स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है। वो कवर करता है फूड सेफ्टी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद रिकग्नाइजेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ द लैबोरेटरी। जैसे मैंने आपको लैबोरेटरी के सेक्शंस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये रिकग्नाइजेशन कौन सा लैब नया ऐड हुआ है कौन सा लैब नया हम निकाल सकते हैं कौन से लैब को हमें सेंट्रल लैब में कह सकते हैं कौन से लैब को स्टेट लैब में कह सकते हैं रेफरेंस लैब कौन से होते हैं ये सब जो स्टैंडर्ड्स है यहाँ पे डिफाइन किए हुए। सो फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे इंडिया में 4 सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन लैब्स है। जब आपके कभी भी कोई भी प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड मिला जाता है तो हम हमारा प्रोडक्ट ये इस लैब को रेफर कर सकते हैं कि मुझे ये लैब से टेस्टिंग चाहिए मुझे जो आपने जो लैब नोटिफाई किया है उसके ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। यू ऑलवेज हैव अ पॉसिबिलिटी टू चैलेंज द टेस्टिंग रिजल्ट्स। उसके बाद आता है जो पैकेजिंग है वो पैकेजिंग का रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें कवर होता है। जो पैकेजिंग मीन्स किस तरीके का पैकेजिंग होना चाहिए क्या पैकेजिंग होना चाहिए कौन सा पैकेजिंग यूज करना चाहिए कौन सा पैकेजिंग नहीं यूज करना चाहिए। अभी इसका एक क्लासिकल एग्जांपल अगर देखते हैं तो महाराष्ट्र में एज अ वी ऑलवेज वी अवेयर अबाउट पास्ट थिंग दैट हमने प्लास्टिक को बैन किया था। सो एक मिसकंसेप्ट सबके दिमाग में ये था कि ये जो हमने रिजेक्ट ये जो किया हुआ है हमारे
फूड प्रोडक्ट को सेफ नहीं है इसके लिए हमने किया था, या ऐसे लगता था कि ये प्रोडक्ट को और डिटोरेट कर रहा है, वो प्रोडक्ट में और खराब कर रहा है। तो फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ये पैकेजिंग का रोल नहीं है, उल्टा जितना हम पॉलीथीन यूज करते हैं उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट सेफ रहता है। बट ये जो लास्ट टाइम महाराष्ट्र में जो बैन किया हुआ था वो ओनली बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, नॉट बिकॉज ऑफ द फूड सेफ्टी एस्पेक्ट। उसके बाद आता है कि रिकवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरप्लस फूड। अभी जब हम बात करते हैं कि ये रेगुलेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमारा कैटरिंग बेस्ड इंडस्ट्री है, जिस तरीके से होटल्स और ये सब इंडस्ट्रीज है उसमें ही रोल प्ले करता है। उसका रीजन ये है कि अगर सरप्लस फूड है तो मैं सेम फूड प्रोडक्ट दूसरों को खिला सकता हूँ। जैसे होटल में हम बहुत बार जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कल का फूड खाया गया खिलाया गया है। तो इस चीज को हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करें और इस चीज को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू कैसे करें कि वो सरप्लस फूड है तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है उसको, किस वे से डिक्लेयर करना है, क्या करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, कौन वो प्रोडक्ट ले और लेके वो कहीं पे ऐसी जगह पे दूसरी जगह पे दे जहाँ पे छोटा प्लेस है। तो ये सब चीज को भी स्टैंडर्ड टू कंट्रोल किया गया है। उसके बाद आता है फूड्स फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन। जैसे बच्चों के लिए जो खाने की चीज आती है, जो मिल्क पाउडर्स और ये सब जो चीजें आती है, एग्जांपल इज अ मिल्क पाउडर जो बच्चों को पिलाने के लिए उसमें न्यूट्रिशन डाला हो जाता है, बहुत सारी चीजें डाली जाती है। वो किस लेवल तक होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इस सब को स्टैंडर्ड डिफाइन करता है जो रेगुलेशन में कवर होता है। अब हमने उसके आगे हम जब चलते हैं तो हमने पैकेजिंग डिफाइन किया है, बट मेरा अंदर का प्रोडक्ट क्या है, कैसा होना चाहिए और क्या डिस्प्लेस दिखाने चाहिए। कि बहुत बार क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट कुछ और होता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारे अलग अलग चीजें दिखाई जाती है या बोला जाता है कि ये प्रोडक्ट खाने से ये चीज अच्छी होगी आपकी या ये चीज वैसे होगी। सो ये इसमें क्या क्या चीजें दिखानी चाहिए, लेबलिंग क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेस कैसे होने चाहिए, अगर नहीं है तो अगर वो डिस्प्ले कर रहा है तो उसके ऊपर किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, ये सब चीजें जो है लेबलिंग डिस्प्ले में किया जाता है। अभी रिसेंटली हम आगे चलते हैं, जब हम अभी जो रिसेंट ट्रेंड आ रहा है और कोविड के बाद जो है वो बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत सारे कंसेप्ट जो है कि आयुर्वेदिक हम यूज करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट आएगा। मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर नाउ स्विचिंग टू आयुर्वेदिक। सो इसको भी फूड से टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे से स्टैंडर्डाइज किया है कि हम किस प्रोडक्ट को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लेता हूँ जो अपना घर पे दालचीनी होती है, तो दालचीनी जो है वो आयुर्वेदिक भी रोल प्ले करती है और आपके नॉर्मल प्रोडक्ट में भी यूज होता है। तो वो दालचीनी आयुर्वेद, अगर वो दालचीनी आप डाल रहे हो तो वो आयुर्वेदिक फूड करके आपको नहीं बोला जा सकता है। सो उसके क्या रूल्स है कि उसको आयुर्वेदिक बोला जाता है या क्या रूल उसको आयुर्वेदिक ना बोला जाए, ये क्लियरली स्पेसिफाई किया है ये स्टैंडर्ड से। उसके बाद आता है वेगन स्टैंडर्ड। अगर सच बताएं तो हम बहुत सारी चीजें जो है ना वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, ऐसा हमारा कंसेप्ट है। बट एक्चुअली हमारे यहाँ पे बहुत सारा इंडिया इज अ वेरी जियो पॉलिटिकली अगर देखते हैं तो बहुत ही फूड के लिए बहुत अच्छा कंट्री माना जाता है। द रीजन इज कि हम ऑलवेज वेजिटेबल प्रोडक्ट या वेजिटेबल प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा वेजिटेबल प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जाता है। बट उसका उसके आगे भी जो कंसेप्ट आता है कि हम वेगन फूड जो बोलते हैं, तो वेगन फूड ये होता है कि जिसमें कोई भी एनिमल जो है, और ये कम्युनिटी स्पेसिफिक है जो अभी अक्रॉस वेस्ट और साउथ सब जगह पे ये वेस्ट और ईस्ट दोनों जगह पे ये फॉलो होता है कि वेगन इज बेस्ट फूड और वो आपको ज्यादा न्यूट्रिशन देता है। सो उसको भी रेगुलेट करने के लिए
फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसका एक रेगुलेशन डिफाइन किया। देन हम थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा लाइसेंसिंग के बारे में समझते हैं कि अगर हमारा सेंट्रल लाइसेंस में कौन सी चीजें आती है। अगर मेरा डेयरी यूनिट है जो 50,000 लीटर्स के ऊपर मिल्क हैंडल करता है डे में, या 25,000 मेट्रिक टन ऑफ सॉलिड मिल्क सॉलिड मीन्स जो मिल्क का फैट होता है, दैट फैट प्लस नॉन फैट जो है वो हैंडल होता है, जो हम किससे मेजर करते हैं, जो घी बटर और ये सब जो चीजें हैं, इसको हम मिल्क सॉलिड को कंसिडर करके उसका कैलकुलेशन होता है, वो 2500 मेट्रिक टन है। ये दो केस में ये यूनिट हमारा सेंट्रल लाइसेंस में जाएगा। वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग में अगर कोई भी 2 मेट्रिक टन के पर डे की कैपेसिटी है, मोर देन 2 मेट्रिक टन, वो सेंट्रल लाइसेंस में चला जाता है। मेरे स्लॉटरिंग हाउसेस जो है, मेजर स्लॉटरिंग हाउसेस सेंट्रल लाइसेंस में जाते हैं, बट उसमें भी थोड़ा सा लिमिट दिया हुआ है जो बाकी के वेंडर्स को सपोर्ट करता है। दैट इज, अगर 50 लार्ज एनिमल या 150 और मोर स्मॉल एनिमल्स अगर स्लॉटरिंग होता है, या 100 और मोर पोल्ट्री बर्ड्स, 1000 और मोर पोल्ट्री बर्ड्स पर डे हैंडल होता है, तो वो सेंट्रल लाइसेंस में चला जाता है। मीट प्रोसेसिंग में 500 केजी ऑफ मीट पर डे और 150 मेट्रिक टन पर एनम अगर मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, तो देन डेफिनेटली मेरा ये जो यूनिट है वो डेफिनेटली सेंट्रल लाइसेंस में आता है। ऑल अदर यूनिट्स, लेबल एंड रीपैकर, अगर कोई मैं रीपैकिंग और रीलेबलिंग एक्टिविटी करता हूँ, रीपैकिंग एक्टिविटी ये होती है कि कोई दूसरा प्रोडक्ट मैं लेके आता हूँ, मेरे यहाँ पे मैं पैक करता हूँ और उसको लेबल करता हूँ, दैट कॉल एज अ लेबलिंग लेबलर्स। एंड रीपैकर्स जो होता है, तो मेरा जो प्रोडक्ट है किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से बना रहा हूँ, बट मेरे मेरे नाम पे बना रहा हूँ, दैट इज अ री पैकर यूनिट। सो उसका सेम केस है, 2 मेट्रिक टन पर डे कैपेसिटी से ज्यादा है, तो फिर मुझे उसको सेंट्रल लाइसेंस में जाना है। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, 100% एक्सपोर्ट करते हैं, वो सेंट्रल लाइसेंसेस के प्रीव्यू में आता है। और अदर्स जो यूनिट्स है, जैसे कोई स्पेशलाइज टेक्निक्स यूज करता है आपके फूड प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के लिए, या कोई डिफरेंट रेसिपीज यूज करता है, या जो करता है जो प्रोडक्ट का वो स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसे जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है वो सेंट्रल लाइसेंस के प्रीव्यू में आता है। या मैं 2 स्टेट में ऑपरेट करता हूँ, जैसे मेरा बिजनेस महाराष्ट्र और गुजरात में है, मेरा बिजनेस महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश में है, मेरा बिजनेस महाराष्ट्र और दिल्ली में है, देन मुझे सेंट्रल लाइसेंस के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा, मीन्स मुझे उसका प्रीव्यू आ जाएगा। फूड कैटरिंग सर्विसेज इन मल्टीपल एजेंसीज, लाइक मेजरली सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज जो है, को भी अगर फूड कैटरिंग करनी है तो मुझे ये सेंट्रल लाइसेंसिंग में है। अब फीस स्ट्रक्चर कैसे होता है कि वेरी अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर होता है कि जब मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ, कि जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया कि पानीपुरी वाला है, उसको मुझे रजिस्टर करना है, तो उसको सिर्फ 100 रुपीज का फीस दे के उसको वो रजिस्टर कर सकता है। अगर मेरा सेंट्रल लाइसेंसिंग है तो 7,500 पर ईयर मुझे वो पे करने हैं। ये जो कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन, ये वन टाइम कॉस्ट होता है। 7,500 पर एनम कॉस्ट होता है, मीन्स पर हर साल में मुझे कितना पे करना है। स्टेट लाइसेंस जो है वो 5,000 to 3,000 के बीच में आता है। कभी कभी जो बिजनेस ऑपरेटर्स जो है, उनके बिजनेस के स्ट्रक्चर को देखते हुए कभी कभी इसको और 2,000 तक उसको लेके जा सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन ऑल फूड सेफ्टी FSSAI एंड उनका बिजनेस कितना है, ये सब समझ के ही वो करते हैं। और फूड सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मेरा होटल रेस्टोरेंट है, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है, जो सर्विसेज फूड सर्विसेज करते हैं,
जैसे स्विगी जोमेटो हो गया, तो इनको जो है वो फूड सर्विस प्रोवाइडर में कंसिडर किया जाता है। जो अदर फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत सारे लोग जो है ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, कि रेफर व्हीकल में ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो या जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट एजेंसीज है उनको भी 2000 का फीस पे करना पड़ता है। दिस इज स्टैंडर्ड डिफाइंस इन एफएसएसआई। अब क्या है कि थोड़ा सा डिटेल में हमने ऊपर समझा हुआ ही है कि व्हाट इज फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड पैकेजिंग। सो बहुत सारे पैकेजिंग जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए। अगर एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि हम मिल्क को प्लास्टिक बैग रिमूवल हम नहीं पॉसिबल, ओके, सो प्लास्टिक बैग भी मुझे यूज करनी है, तो कौन से लेवल तक मुझे प्लास्टिक बैग अलाउड है। अगर अभी रिसेंट रेगुलेशन की बात करते हैं जो इसको सपोर्ट करता है, दैट इज 50 माइक्रोन इज मिनिमम साइज। इससे कम का जो है हमें यूज नहीं करना है, चाहिए पैकेजिंग के लिए। ये सब जो है ये पैकेजिंग में बहुत अच्छे से बताया गया है। अब ये डिफाइन कैसे किया जाएगा, या इसका लॉजिक क्या होता है कि इसका हम माइग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। सो माइग्रेशन टेस्टिंग में अगर मैं मिल्क प्रोडक्ट हैंडल कर रहा हूँ, तो उसमें से जो वाटर कंटेंट प्लास्टिक से नहीं माइग्रेट होगा एक जगह से दूसरी जगह पे, बट शायद उसमें जो मिल्क का कंटेंट है, जो हम फैट, प्रोटीन और एसएनएफ बोलते हैं, वो अगर माइग्रेट हो रहा है तो देन डेफिनेटली मेरा प्रोडक्ट सबस्टैंडर्ड हो सकता है। तो वो जब पैकेजिंग डिफाइन करते हैं तो ये सब माइग्रेशन टेस्टिंग हम करते हैं। इसमें कोई बाहर से कंटेमिनेशन प्रोडक्ट को कंटेमिनेट ना करे, और प्रोडक्ट के अंदर की न्यूट्रिशन जो है वो बाहर ना जाए, ये सब माइग्रेशन टेस्टिंग थ्रू मेजर किया जाता है। एंड ये सब जो है फूड सेफ्टी को प्रायोरिटाइज किया जाता है कि इसका पैकेजिंग बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करता है फूड इंडस्ट्री में। क्योंकि बहुत सारा हमारा हम जो इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में चैलेंजेस ये है कि इट इज वेरी पेरिशेबल आइटम। सो पेरिशेबल आइटम जब बोलते हैं तो इट इज स्पॉइल बिटवीन 0 to 15 days। जब हम पेरिशेबल किसी भी प्रोडक्ट को पेरिशेबल आइटम बोलते हैं, तो 0 to 15 days में जो कुछ भी खराब हो जाता है, उसको हम पेरिशेबल आइटम होता है। तो ये पेरिशेबल आइटम अगर ऐसे ही खराब हो रहा है, तो हमें डे इन डे आउट में एग्रीकल्चर कमोडिटीज बनानी पड़ेगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको स्टोरेज करने के लिए, अगर हम मिल्क की बात करते हैं, तो मिल्क नॉर्मल केस में 2 दिन में खराब हो जाता है। अगर हम उसको एनिमल से जब हम लेते हैं, बट अगर उसको हम अच्छे से प्रोसेस करके अच्छे से पैक करके देते हैं, तो हमें 7 दिन का भी सेल्फ लाइफ मिल जाता है। सो हम उसको उसकी लाइफ भी बढ़ा देते हैं, प्लस उसको सेफ भी रखते हैं कि किस तरीके से सेफ रहना चाहिए। मीन्स जैसे मैंने फर्स्ट डे पैक किया है, ऑलमोस्ट सेम टाइप का मटेरियल मुझे 7वें दिन भी मिलना चाहिए इन केस ऑफ मिल्क, या जो कुछ भी मेरा सेल्फ लाइफ है वो उतना उतना हमें मिलना चाहिए। ये सब रूल जो है वो पैकेजिंग डिफाइन कर, तो ये रेगुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन फूड इंडस्ट्री। उसके बाद क्या होता है कि आई डोंट नो कितने कंज्यूमर ये चीज को मॉनिटर करते हैं, बट मेजोरिटी अगर मैं बताऊं तो एजुकेटेड लोग भी जो प्रोडक्ट लेते हैं, फूड प्रोडक्ट, उसका लेबलिंग कभी चेक नहीं करते कि क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये भी अभी तक आइडिया नहीं है कि नॉनवेज का लोगो जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है। अ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में, जिसको लोगों को एजुकेट करना, और इसके लिए बहुत सारे एफएसएसआई स्टेज भी लेता है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हुई है, बहुत सारा एजुकेशन देने के लिए बहुत सारी चीजें एफएसएसआई भी प्रमोट कर रहा है और गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रहा है। बट सबसे इम्पोर्टेंट, बी अ एजुकेटेड पर्सन, हमें ये जानना चाहिए कि व्हाट ऑल शुड बी कवर, मीन्स आप जो ले रहे हो वो अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं। ये फूड बिजनेस की भी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वो यूज कर रहे हैं वो आपके लेबल में डिक्लेयर करें।
और एफएसएसआई इसको बहुत केयरफुली, बहुत ही ज्यादा मीन्स एग्रेसिवली इस चीज को प्रमोट कर रहा है कि जैसे हमारे पास वेज नॉन वेज, अभी तक आपने लेट सपोज कुछ लोगों ने ये 3 सिंबल देखे होंगे, बट कभी आपने ये सिंबल नहीं देखा होगा, क्योंकि जब ये सिंबल यूज होता है तब ये नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होता है। किसी के घर पे अगर पेट है, तो अगर पेट को अगर कोई खाना खिलाता है तो उसके लेबल में ये डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो ये नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होता है। प्लस अगर लेट्स सपोज जो सरप्लस फूड के लिए मैंने बात की है, तो अगर वो सरप्लस फूड किसी रेस्टोरेंट से कलेक्ट करना है, तो ये लोगो मैंडेटरी है कि उसके ऊपर ये लोगो होना चाहिए। उसके बाद हमारे न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, बहुत सारे लोगों को अभी हेल्थ फ्रीक है, तो उनको आइडिया है कि मुझे कितने न्यूट्रिशन देने चाहिए, कितने कैलोरीज मेरे आनी चाहिए, ये सब जो है क्या क्या चीजें दिखानी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं दिखानी चाहिए, ये न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन में कवर होता है। हमें डेली कंजम्पशन में जो है 2000 इंटरनेशनल यूनिट इतनी कैलोरीज जो है वो हमें कंज्यूम करनी चाहिए। अ, ये कंजम्पशन का आपका फूड प्रोडक्ट उसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो आपको न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन थ्रू अभी मिल जाएगा, जो हम डायरेक्टली फूड प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। देन नेम ऑफ द फूड एंड कंटेंट ऑफ द इंग्रेडिएंट मीन्स वो प्रोडक्ट है क्या, वो अच्छे से डिफाइन होना चाहिए। वो कौन से कैटेगरीज में आता है फूड में, वो डिफाइन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसके ऊपर भी एफएसएसआई एक्शन ले सकता है। एफएसएसआई का लोगो होना चाहिए कि आपको जब लाइसेंस मिलता है तो एफएसएसआई का नंबर मिलता है, तो एफएसएसआई लोगो और लाइसेंस नंबर मैंडेटरी है। अगर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में भी आप देखते हो तो एफएसएसआई और बीआईएस का नंबर मैंडेटरी है। अगर नहीं है तो वो बॉटल नहीं खरीदनी चाहिए, और ऐसे है तो आपको वेरी लीगल राइट्स है, आप इसको इन्फॉर्म कर सकते हो। डिक्लेरेशन ऑफ फूड एलर्जन, अभी ये जो कंसेप्ट है, अभी इंडिया में जिस तरीके से सब सिचुएशन है, तो इंडिया में भी बहुत सारे एलर्जिक कंडीशंस डेवलप हो रही है। वो चलिए भाई। एलर्जी, हेलो हेलो, Sorry, sir. Some was unmuted. Yeah. ओके। सो जो एलर्जिक डिसीज है कि मिल्क खाने से भी लोगों को एलर्जी होता है, पीनट खाने से भी लोगों को एलर्जी होता है, तो ये सब चीजें डिक्लेयर करना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट में ये चीजें है, डायरेक्ट फॉर्म में या इनडायरेक्ट फॉर्म में, या आपके यहाँ पे वो प्रोसेस हो रहा है, तो ये डिक्लेयर करना जरूरी है। प्राइसिंग होना चाहिए। अब प्राइसिंग में और एक चीज रिसेंटली ऐड की है जो पीसीआरओ गाइडलाइन देती है, दैट इज यूनिट पर ग्राम, और रुपीस पर ग्राम कितना है वो भी आपको डिक्लेयर करना है। कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर द इम्पोर्टेड गुड्स, तो अगर कोई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है तो आपको पता होना चाहिए आपके लेबल थ्रू कि वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है या नहीं। बैच कोड होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस होना चाहिए, कौन सी जगह पे वो बना है वो भी होना चाहिए। देन उसकी क्वांटिटी कितनी है वो भी होना चाहिए, और फूड एडिटिव जो है वो फूड एडिटिव्स भी कितने होने चाहिए, और वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको कौन से एडिटिव्स ऐड किए हुए वो आपको लेबल में डिक्लेयर करने की जरूरत है। जो एनुअल रिपोर्ट करंटली एफएसएसआई के पोर्टल थ्रू हमने कलेक्ट किया था, जो 2018-19 का अवेलेबल है, उसको अगर हम रेफर करते हैं तो आप देखोगे कि पेनल्टीज थ्रू 32.57 करोड़ इन 2018-19 में हमने कलेक्ट किए थे। उसका वैल्यू बहुत सारा बढ़ गया है, बट फिर भी ये जो पेनल्टीज है ना, ये गवर्नमेंट इज नॉट हैप्पी टू कलेक्ट द पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ दिस मीन्स। ये प्रॉब्लम होने के बाद फूड बिजनेस ऑपरेटर को पेनल्टीज कलेक्ट करने में उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। बट इशू क्या है कि हमें जो है, जो फूड बिजनेस ऑपरेटर चलाते हैं या फूड बिजनेस ऑपरेटर को
शायद पता नहीं होता है जानबूझ के, या कभी कभी पता नहीं है, या जो कुछ भी इश्यूज है, इसके वजह से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वायलेट होते हैं। और उसमें अगर आप मेजर कंट्रीब्यूटर देखोगे तो हमारा फूड सैंपल एनालिसिस जो है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड पाए गए थे 2018-19 में। अब ये जो अनस्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, तो वो डेफिनेटली आपके हेल्थ को बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। मीन्स ये आपके अगर मैं फूड बिजनेस ऑपरेटर हूँ, उसको भी ब्रांड इमेज में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और जो खाने वाले हैं उनको भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो ये जो इश्यूज है, इसको कम करने के लिए हमें जो स्टैंडर्ड्स है, या कौन से प्रोडक्ट कैसे है, इसमें बहुत सारा जो है 60% जो है वो जानबूझ के करते हैं, बट 40% ऐसे इश्यूज हैं जो हमें पता नहीं होता है कि ये चीज हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है या हमारे प्रोडक्ट में इशू है, इसके वजह से ये पेनल्टीज इम्पोज की जाती है। सो बाय नोइंग ऑल दिस रेगुलेशंस, यू गेट टू नो कि हमारा प्रोडक्ट में क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज कैसे कंट्रोल करनी चाहिए, क्या चीज मॉनिटर करनी चाहिए, ये सब इस चीज में बताया जाता है। मीन्स हमें ये ध्यान देने की बहुत जरूरी है कि हम कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, और उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के हाथ में, कि वो चेक करके हमें कोई इशू नोटिस इशू करे या कोई हमें ट्रबल करे। सो ये जस्ट जनरल अंडरस्टैंडिंग मैंने दी हुई है। बहुत सारी चीजें इसमें बताने लायक है, बट जो टाइम है वो बहुत कम है। इसके लिए मैंने मेजोरिटी ऑफ द चीज मैंने इसमें कवर की है। तो अगर किसी के क्वेश्चंस है तो वेलकम, मैं उस चीज को मेरे कैपेसिटी पे डेफिनेटली सपोर्ट करूँ। सर सर वेगन एनिमल फीड नसतं का याच्यामध्ये? एनिमल फीड कन्सिडर नाही होत FSSI ला? FSSI ला एनिमल फीड नाही कन्सिडर होत मॅडम. बेसिकली कसं आहे की ह्याच्यामध्ये पण हे खूप ट्रिकी क्वेश्चन आहे. ज्यावेळेस आपण ट्रिकी क्वेश्चन म्हणतो ना, तर एनिमल फीड जर तुम्ही आता पोल्ट्री फार्म मध्ये देताय तुम्ही, एक्झाम्पल साठी एक मिनट सर, क्योंकि ना हमारे 2 स्टार्टअप है जो एक ब्लैक फॉरेस्ट क्या वो ब्लैक सोल्जर फ्लाई का फीड बना के पोल्ट्री में देने वाले हैं, और Okay. दूसरे हमारे द्विवेदी जी है जो वो भी एक एनिमल फीड बना रहे हैं। तो उनके Okay. लिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपको। करेक्ट मैं इसको थोड़ा सा ना वही मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मेरा एनिमल फीड है। एनिमल फीड दो टाइप का होता है, एक पेट जो होते हैं उनको फीड करने के लिए होता है, और दूसरा जो फीड होता है जो जैसे मेरे मेरे पोल्ट्री फार्म्स है, या मेरे गोट जहाँ पे हार्वेस्ट मीन्स वहाँ पे गोट को दिया जाता है, और वही जो है वो कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए आता है। तो उसमें जो रेगुलेशन है वो डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है, बट उसको टेस्टिंग करना और उसके जो कंप्लायंसेस मॉनिटर करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि अगर मैं एक कोई प्रोडक्ट पोल्ट्री फार्म में दे रहा हूँ और उसमें पेस्टिसाइड है, तो आपका जो एनिमल है, एनिमल में भी वो पेस्टिसाइड के रेसिड्यूज रहते हैं। वो इन सम केसेस साइंटिफिक लिटरेचर या उसको प्रूवन टेक्निक नहीं है, बट वो जो है कभी कभी एनहांस भी होता है, कि जो एनहांस होने के बाद जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे लिए फिट नहीं होता है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं होता है। सो बहुत सारे जो अभी मल्टीनेशनल ब्रांड्स है या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैंडल करता है, जो इंटरनेशनल शिप करते हैं, तो वो फीड को भी टेस्टिंग का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जनरेट करता है। बट करंटली ये कवर नहीं होता है FSSI में, बट इनडायरेक्टली डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट को इम्पैक्ट करता है। सर वेगन के अंदर क्या क्या है? सॉरी, आपका
आपका आवाज क्लियर नहीं है सर। हाँ सर, वेगन फूड। वेगन फूड, इट इज अ वेरी गुड टॉपिक। वेगन फूड मीन्स सब वेजिटेबल वाले प्रोडक्ट्स। अब वेजिटेबल प्रोडक्ट में अगर मिल्क है, मिल्क जो है वो वेजिटेबल प्रोडक्ट, ओके, बट वेगन में वो मिल्क कवर नहीं होता। अब वेगन को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि जो प्रोडक्ट एनिमल के सोर्स से आता है, एनिमल के सोर्स से आता है मीन्स मिल्क जो है वो एनिमल से ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो it is not covered as a vegetable vegan product, या मेरे वेजिटेबल का जो क्या बोलते हैं फैट निकाला जाता है, वेजिटेबल का ऑयल निकाला जाता है और वो ऑयल आपके प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, वो वेगन प्रोडक्ट नहीं कहा जाता। सो एनी सोर्स फ्रॉम द एनिमल ओरिजिन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वेगन प्रोडक्ट। सर ऐसे Okay. कोई, हेलो हाँ, सर, अपना प्रोडक्ट वीगन प्रोडक्ट है इसलिए कोई स्पेशल सर्टिफिकेशन या फिर स्पेशल टेस्टिंग करना पड़ता है या फिर? यस, टेस्टिंग इज मैंडेटरी। इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। आपको डीएनए टेस्टिंग मैंडेटरी है, डीएनए टेस्टिंग है आपका, मल्टीपल प्रोफाइल्स आपको चेक करने पड़ेंगे कि डीएनए में भी देर आर डिफरेंट प्रोफाइल्स। अगर मैं प्रोफाइल्स की बात करता हूँ तो मेरा पोल्ट्री का अलग प्रोफाइल होता है। मेरा अगर जैसे मैं गेहूं यूज करता हूँ, वीट यूज करता हूँ, तो वीट में जो है ना लार्वास और बिटल, रेड बिटल्स होते हैं, सो उनके भी डीएनए हो सकता है। और ये क्या है कि ये जो होते हैं ये डीएनए आपको एनिमल ओरिजिन डीएनए होते हैं। सो ये भी आपके रिजल्ट को फॉल्सिफिकेशन दिखा सकता है कि ये ऑर्गेनिक मीन्स ये जो प्रोडक्ट्स है वो नहीं आपको वेगन में फिट होंगे। ऐसे बहुत सारे क्लेम्स आते हैं, बट जनरली ये जो कीड़े जो लगते हैं, गेहूं में कीड़े लगते हैं या आपके पल्सेस में कीड़े लगते हैं, तो ये कीड़े बाहर से नहीं आते हैं। ये अंदर ही उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसको ही खा के ये डेवलप होते हैं। सो ऐसे प्रोडक्ट का भी प्रोफाइलिंग करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोडक्ट का प्रोफाइलिंग करना पड़ता है, तब जाके आप उसको क्लेम कर सकते हो। बट अभी रिसेंटली उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि जो कुछ भी इंडिया में जिस टाइप के यूज होते हैं प्रोडक्ट्स, उसको कंसिडर करके अभी प्रोफाइलिंग होती है, डीएनए प्रोफाइलिंग। और सर एफएसएसआई 2 प्रकार का होता है, एक प्रोडक्शन के लिए, एक क्वालिटी के लिए। नहीं, ओके। एफएसएसआई इज होलसम मीन्स मैंने जैसे बताया ना कि एफएसएसआई इज रेगुलेशन। मैं अगर बात करता हूँ तो क्वालिटी और प्रोडक्शन को मैं उसको लिंक नहीं कर सकता हूँ। इट इज अ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट हु इज हैंडलिंग ऑल दिस कंप्लायंसेस मॉनिटरिंग करना और जो ऑनलाइन टेस्टिंग करना बहुत ही डिफरेंट। वैसे देखा जाए तो कुछ पार्ट सिमिलर है, नो डाउट देर आर सम सिमिलैरिटीज, बट नॉट ऑल द थिंग्स आर सिमिलर। ओके सर, थैंक यू। सर वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। कई सारे कंपनीज रिब्रांडिंग करते हैं, रिब्रांडिंग या फिर रीसेल करते हैं ऑन देयर बिहाफ, लाइक मार्केटेड बाय। करेक्ट। उनके लिए क्या रूल एप्लीकेबल है सर एफएसएसआई के अंदर? करेक्ट। सो रीपैकर और लेबलर, आता अब मैं जब ये चीज बात करता हूँ ना, तो ये आता है रीलेबलिंग एक्टिविटी। रीलेबलिंग एक्टिविटी में क्या होता है कि मैं कहीं से प्रोडक्शन, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्शन बना रहा हूँ जो मेरे नाम पे बन रहा है, तो मुझे भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर मुझे लाइसेंस लेना है, मेरे ब्रांड के ऊपर बनाना है, तो मुझे मार्केटेड बाय का लाइसेंस मिलेगा और उनको मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों के लाइसेंस लिंक रहेंगे। ओके, सो जब तक ये लिंकेज नहीं है, और अगर आप देखोगे मैं कुछ एग्जांपल भी आपको दे सकता हूँ कि
आप कैडबरी लेते हो या बेसिक बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट आप लेते हो, तो वो बहुत सारा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। या हम कोका कोला लेते हैं, थम्स अप लेते हैं, या ये ऐसे जो प्रोडक्ट्स है ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, तो उनके यूनिट के नेम्स और एड्रेसेस में और उनका लाइसेंस मेरे लाइसेंस से लिंक है। अगर मुझे उनको मैन्युफैक्चर को कोई प्रॉब्लम होता है तो डेफिनेटली वो जो मार्केटेड है उनको भी प्रॉब्लम होगी। सो उनको भी उतना ही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि ये सब चीज को मॉनिटर करना, मीन्स सिर्फ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग ही मॉनिटर करे, ये मैंडेटरी हेलो रिक्वायरमेंट तो या। हेलो हेलो। हाँ बोलिए प्रसाद जी। सर, मैं ये बोल रहा था, जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं उनको उनको ये लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है मेरी समझ से। नहीं, सब कोई भी थर्ड पार्टी करता है तो उनको लाइसेंस लेना जरूरी है। नहीं सर, मैं बताऊं आपका, मैं तो सर्विस में था तो BIS में अभी रजिस्ट्रेशन करवा दी, जो हम थर्ड पार्टी बनवाते थे फीड। करेक्ट। तो हमारी डेयरी ने लाइसेंस नहीं लिया, BIS का लाइसेंस जो लोग बनाते थे मैन्युफैक्चरर, उन्होंने BIS का लाइसेंस ले लिया और उनका हमारे साथ एग्रीमेंट था, तो हमको अलग से BIS का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं ये प्रैक्टिकली करवाया हूँ, किया हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। शायद आप रीसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे सर इस मामले में। जी सर, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। डोंट टेक दिस एज अ ऑफेंसिव स्टेटमेंट, बट ओके। दिस प्रैक्टिसेस इज रॉन्ग प्रैक्टिसेस। रॉन्ग प्रैक्टिसेस रॉन्ग। अगर ये कहीं ना कहीं पे सी, अगर मैं फूड बिजनेस ऑपरेटर की बात करता हूँ, अक्रॉस इंडिया अगर मैं बात करता हूँ, तो मोर देन 1 मिलियन फूड मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर या फूड बिजनेस में जो काम करते हैं, इतने लोग हैं। नहीं सर, और मैं FSSAI, सुनिए सुनिए ना एनिमल सर। फीड की बात कर रहा हूँ सर, एनिमल ह्यूमन फूड की नहीं बात कर रहा हूँ, एनिमल फीड। हाँ, एनिमल फीड, मैंने जैसे बताया कि सर एनिमल फीड इज कंप्लीटली अ ग्रे सब्जेक्ट फॉर FSSAI। बट FSSAI में ग्रे सब्जेक्ट इसके लिए है कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। अगर वही मिल्क प्रोडक्ट आपका FSSAI में टेस्ट हुआ होता और उसमें अगर कोई पेस्टिसाइड मिला होता या कोई दूसरी टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल मिली होती, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो एनिमल फीड को भी होगा। जैसे मैं पहले भी क्वेश्चन जैसे आजकल ये या जो फूड का जो बोलबाला चल रहा है ना, वन ऑफ द रीजन इज ये कि ये जो आपका एनिमल फीड है उसके थ्रू आपको पता नहीं कि आपको काउ मिल्क में क्या आपको आ सकते हैं पेस्टिसाइड अंश। ये दिस इज वन ऑफ द रीजन कि ये क्यों आजकल लोग जाते हैं वेगन की तरफ। वन ऑफ द रीजन है। सो इट इज, हम लोग नहीं कह सकते सर कि ये इनडायरेक्ट है। एनिमल फीड को आप मैंने थोड़ा सा FSSAI को कंसिडर करना पड़ेगा मेन ये करके, सब्जेक्ट करके आपके रेगुलेशन के लिए। मैं एक चीज बोलता हूँ ना। हेलो। हाँ बोलिए। अशोक सर म्यूट पर है सर आप। हेलो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। मैं तब तक एक क्वेश्चन पूछता हूँ सर। हमारे पास 2-3 स्टार्टअप है जो कि फूड में है। एक कोकण फूड में सरिता बेलनेकर इनका प्रोडक्ट है। कोकण फूड्स और मैन्युफैक्चरिंग करके अलग अलग उसका रेसिपीज क्रिएट करके बेचते हैं। उसके अलावा फ्रूगल चॉकलेट करके एक है, उनके लिए थोड़ा हाँ सा। हाँ सर। कोरे, यस सर। let Dr. Kirti to ask something. He's a senior scientist. Let her to ask something. Okay? जी ओके सर। ओके सर। हाँ, Dr. Kirti, you just ask some question. कीर्ति मैडम, आर यू ऑन देयर ऑन दैट साइड? तब तक उदय आप अपना पूछ लीजिए। यस यस, मैं मीनवाइल वही पूछता हूँ सर। हमारे पास 3-4 स्टार्टअप हैं जो फूड रिलेटेड इसके अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि ये
सरिता बेलनेकर कोकन फूड्स के प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा फ्रूगल चॉकलेट करके एक राकेश वर्मा जी का प्रोडक्ट है। अभी इनको उनके उनके लेवल पे वो हर एक डिवीजन पे काम कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में फ्रूगल चॉकलेट काम कर रहा है। उसके अलावा ये सरिता बेलनेकर का बेंगलोर के कुछ आउटलेट्स के ऊपर वो कुछ प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं। तो इनको अगर Correct. ये प्रोडक्ट जो है स्टेट वाइज एक्सप्लोर करना होगा, तो एफएसएसआई के लिए स्टेट वाइज रूल्स और ओवरऑल इंडिया वाइज रूल्स आप थोड़ा बताएंगे? लाइसेंस लाइसेंसिंग, यस, हाँ। ओके, इसमें दो पार्ट है। मैं पहले जो लाइसेंसिंग वाला पार्ट है, ये लिंक है, इसके लिए मुझे दोनों पार्ट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक जो है लाइसेंसिंग की पार्ट में है कि अगर वो एक स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं तो उनके बिजनेस का वॉल्यूम कितना है या उनका टर्नओवर कितना है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर मैं दो स्टेट में ऑपरेट कर रहा हूँ या मेरा टर्नओवर मोर देन 12 लाख है, तो मुझे वो सेंट्रल लाइसेंस में जाना पड़ेगा। अब दूसरा पार्ट आता है रेगुलेशंस के लिए। आप स्टेट में हो या सेंट्रल में हो, आपको जो स्टैंडर्ड है वो सेम स्टैंडर्ड फॉलो होगा। मीन्स ओके, के लिए रिलैक्सेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। मीन्स अगर मैं चॉकलेट का एग्जांपल देता हूँ, जो सेंट्रल लाइसेंस को स्टैंडर्ड से अप्लाई होता है वही स्टेट लाइसेंस को भी अप्लाई होता है। सो स्टैंडर्ड्स के लिए ऐसा बाइफर्गेशन नहीं है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टैंडर्ड्स चलते हैं। हाँ, इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, दैट इज ओनली मिल्क एक्सेप्शन है कि मिल्क जो है वो लोकली प्रोड्यूस होता है या लोकली होता है। जो हम सप्लाई करते हैं उसमें फैट, नॉन फैट और जो बाकी के जो कंपोनेंट्स है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम मिल्क देयर इज नो अदर प्रोडक्ट हु हैज अ एक्सेप्शन। इवन मीट एंड मीट प्रोडक्ट, मीन्स अगर मैं मीट एंड मीट प्रोडक्ट महाराष्ट्र में कंज्यूम कर रहा हूँ और मीट एंड मीट प्रोडक्ट में लेट्स सपोज दिल्ली में, हरियाणा में या गुड़गांव में कर रहा हूँ, तो द स्टैंडर्ड्स इज वेरी सिंपल एंड वेरी सिंगल स्टैंडर्ड। ओके सर, सर एक पूछना था मुझे। गॉट इट सर, गॉट इट सर. हा सर, हॅलो सर. आशिष हा इंगवले सरांना काहीतरी हा. विचारायचंय. हाँ, पूछिए सर, पूछिए. सर आपण स्टेट लेवलला एक लायसन्स काढल्यानंतर एक वर्ष नहीं प्रतिबड़ा में ये कीर्ति जलगांव का क्वेश्चन पूछा क्या? नहीं नहीं, वो नहीं है. आप अभी इंगवले सर पूछ रहे हैं सर. नहीं, हाँ. कीर्ति कुछ हमारा बोलिए. साइंटिस्ट को कॉपी कुछ पूछा क्या? नहीं पूछा, वो नहीं है अभी यहाँ पे. नहीं ओटीपी अभी. हाँ, मैं कॉल करता हूँ सर मैडम को, वो क्वेश्चन करेंगे, तब तक हम सुनील सर का लेते हैं सर. अभी इंगवले सर पूछ रहे हैं. हाँ, पूछिए इंगवले सर. स्टेट लेवल के ऊपर आता एक लाइसेंस निकला तो एक साल के बाद ऑटोमेटिक सेंट्रल लेवल पे होता है क्या, कैसा है? नहीं, ऐसा नहीं होगा सर। अगर आपका सिर्फ क्या है कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि लास्ट ईयर आप 1 टन के आसपास पर डे का प्रोडक्शन कर रहे हो, और दिस ईयर आपने उसको 1.2 मेट्रिक टन किया और नेक्स्ट ईयर 1.5 मेट्रिक टन हुआ। तो जब आपका 1.5 मेट्रिक टन हो जाएगा तब आपको स्टेट अथॉरिटी को आपको बताना पड़ेगा, तब ही जाके आपका वो लाइसेंस स्टेट लाइसेंस है सेंट्रल लाइसेंस में। इसमें भी जो स्टेट का सेंट्रल में लाइसेंस जाता है उनको कंपलसरी एनुअल रिटर्न जो है स्टेट और सेंट्रल को देने पड़ते हैं। उसके बेसिस के ऊपर एफएसएसआई आपको मैंडेट करता है कि आपको एडवाइस करता है कि आपका जो सेम लाइसेंस नंबर है आपको स्टेट से सेंट्रल में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो टोटल लुकआउट है ये सब चीज का, ये अभी सेंट्रल के प्रीव्यू में जाता है, तो आपको सेंट्रल लाइसेंस के एप्लीकेशन करके उसको माइग्रेट करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, थैंक यू सर. और कोई कुछ पूछना चाहता है? हेलो. हाँ, हाँ. बोला. हाँ सर, अभी मेरा रजिस्ट्रेशन है, मेरा टर्नओवर 12 लाख से नीचे है. करेक्ट. हाँ, तो इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन करके रखा है एफएसएसआई का. तो उसका मैम लाइसेंस. आप हाँ
आप क्या बिजनेस करते हो, थोड़ा सा बता देंगे तो मैं सर मेरा फ्रूट प्रोडक्ट्स, फ्रूट प्रोसेसिंग का है। मतलब हमारे यहाँ जो जामुन है, जैकफ्रूट है, उसके प्रोसेस प्रोडक्ट बना के हम ये करते हैं, मार्केट में सप्लाई करते हैं। ओके हाँ, तो अभी हम इनिशियल स्टेज में है, हमारा टर्नओवर ज्यादा नहीं है, 12 लाख से नीचे है पर ईयर का। तो इसलिए मैंने ओके। आप कितना प्रोडक्ट हैंडल करते हो पर डे में? पर मंथ का सर एक 50 kg तक जाता है अभी पर डे का। 50 के? हाँ ओके हाँ हेलो सर। जी जी। हाँ हेलो सर, मैं उदय जी। हाँ, एक मिनट एक मिनट द्विवेदी सर, एक मिनट रुकिए द्विवेदी सर। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ बोलते हैं। द्विवेदी हेलो। जी, द्विवेदी जी एक मिनिट रुकिए. हा मॅडम तुम्ही कंटिन्यू करा, सरांशी बोला हाँ तुम्ही. हेलो। अरे अरे कोण आहे, त्यांना म्यूट करा बरं. थोड़ा रुकिए, ओके। ऑलरेडी क्वेश्चन चल रहा है, उसके बाद पूछिए प्रसाद जी. ओके ओके, कर रहा हूँ आपको. कर रहा हूँ। हाँ बोलिए मैडम, बोलिए. हाँ. हाँ अच्छा तो वही पूछना था सर। तो मुझे अभी मतलब स्टेट का रजिस्ट्रेशन किया है, तो लाइसेंस कन्वर्ट करने के लिए फिर कुछ अलग प्रोसीजर करना पड़ेगा? अलग प्रोसीजर मीन्स पहले आपने रजिस्ट्रेशन किसके लिए किया था, और आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट के प्रीव्यू में ही था? हेलो हॅलो मॅडम. हॅलो. हा बोला, तुम्हाला ऐकायला आलं? सरांनी काहीतरी विचारलं तुम्हाला. हो तेच म्हटलं मी. स्टेट साठी रजिस्ट्रेशन केलंय. टर्न ओव्हर 12 लाखाच्या खाली आहे. बरोबर. आता ह्याच्यामध्ये की ह्याला ना पूर्ण ह्या दोन गोष्टीवर किंवा 2-3 गोष्टीवर आपल्याला समजता येत नाही. ह्याला कशा पद्धतीने आपल्याला समजून घ्यावं लागेल, की आता तुम्ही ऑपरेशन काय करताय? म्हणजे आता ब्लॅक फ्रूट ऍज अ होलसम तुम्ही एका बॉक्समध्ये पॅक करता, म्हणजे तुमच्याकडून ऍग्रिकल्चरल प्रोडक्ट येतो, तिथं तुम्ही क्लिनिंग करतायत, प्री प्रोसेसिंग करतायत, आलेलं तसंच पॅक करतायत. ह्याच्यावर खूप गोष्टी डिपेंड आहेत. म्हणजे एकाच गोष्टीवर डिपेंड नाहीये की म्हणजे जेवढी इन्फॉर्मेशन आहे ना ती सफिशियंट नाहीये. पण मी तुम्हाला जस्ट एक समराईज सांगतो की जर मी प्री प्रोसेसिंग करत आहे तर मला डेफिनेटली माझं जे ऍप्लिकेशन आहे ते मला मूव्ह करावं लागेल लायसन्सिंगसाठी. रजिस्ट्रेशन तिथे मला चालणार नाही. पण जर मी तसेच्या तसं येते आणि बेसिक ऑपरेशन म्हणजे कसं की मी जस्ट एक एक्झाम्पल घेतो की मँगो आलाय आणि मँगोला मी काय केलंय की फक्त वरून कपड्यांनी साफ करतोय आणि मी बॉक्समध्ये पॅक करतोय. अशासाठी रजिस्ट्रेशन तुमचं कंटिन्यू केलं झालं तरी तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येणार नाही. पण जर हीच जो पण क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाह रहे हो गोष्ट वो आहे क्लियर की करो. तुम्ही नाही, त्यांचा रेडिओ चालू आहे, त्या द्विवेदींचा, त्यांना म्यूट करा. ओके. हा सो हा. जर ह्याच्याच जागी मी काय करतोय की जे येतंय जे मँगो येत आहेत मला आणि त्या मँगोला मी काय करतोय की केमिकल मध्ये डीप करून, केमिकल ह्याच्यासाठी की जसं वरच्या सरफेसेस वरचे जे बॅक्टेरिया आणि हे सगळं किल करून ह्या सगळ्या गोष्टी करतोय. तर त्यावेळेस मला लायसन्सिंग घेणं मॅन्डेटरी होऊन जातं. पण तेच करेक्ट. मी जर फक्त बेसिक गोष्टी करत आहे, बेसिक ऑपरेशन करत आहे, तर तिथं मला रजिस्ट्रेशनवर पण माझं काम होऊन जाईल. नहीं मैडम, मेरे ख्याल से शरबत वगैरह बनाती है, आंबा पोड़ी, फणस पोड़ी, लाइक उस तरीके के प्रोसेस फूड देन वो बेचती है. देन आपको तो कंपलसरी लाइसेंसिंग में जाना पड़ेगा मैम. जी जी जी. ओके ओके. और Thank you, इसको sir. जाने के लिए ना मैम आपको जो अभी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है ना उसको आपको सरेंडर करना पड़ेगा और नए लाइसेंस का एप्लीकेशन आपको डालना पड़ेगा. सो ये रजिस्ट्रेशन टू लाइसेंस डायरेक्टली माइग्रेट नहीं होता है. स्टेट टू सेंट्रल माइग्रेशन पॉसिबल है बट रजिस्ट्रेशन टू लाइसेंस पॉसिबल नहीं. ओके सर, लेकिन जब मैंने ये Sorry. प्रोसीजर खुद किया है सब, तो हम्म. उसमें जो कैटेगरीज है, रजिस्ट्रेशन में भी कैटेगरीज दिए हुए उन्होंने, प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हम्म. वो सब ऐसे फॉलो किया है। फिर वो जो मैम अथॉरिटी है, अभी लोकल कैसे, अथॉरिटी है। हाँ मैं आपको ना थोड़ा सा इसके लिए ब्रीफ कर दूं मैम. अभी क्या है कि जो स्टेट लाइसेंस में
मीन्स थोड़े से ड्रॉबैक्स FSSAI में भी है, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ। बीइंग अ कंसल्टेंट मैंने बहुत सारी जगह पे मीन्स लास्ट मीटिंग में यहाँ से ही एक कंसल्टेंट थे जिनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दिया था। उनका भी सेम इशू था कि उनका रजिस्ट्रेशन था और उनको चेंज करना था। ये उनकी प्रोसेस मैंने लास्ट ईयर कुछ किया था। तो मुझे याद है कि स्टेट वाले आपको दोनों जगह से परेशान करेंगे। द रीजन इज आज आपको वो बोल रहे हैं कि ये उसमें भी सर्टिफिकेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बट यही लोग आपको परेशान करेंगे जब आपको उनको कोई आप एक बड़े प्रीव्यू में आ जाओ। द राइट वे इज टू हैव अ लाइसेंस, क्योंकि ये रेगुलेशन में ऐसे बोला गया है। ये मीन्स एक मेरा थॉट प्रोसेस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं ये थॉट प्रोसेस यही दे रहा हूँ कि जो सही है वही थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ। अभी करंटली उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, दे दिया है, बट वो बाद में आपको ही क्वेश्चन करेंगे क्या दिस इज द रॉन्ग थिंग। ओके, तो अभी सर हमें सेंट्रल के लिए डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा लाइसेंस के लिए? नहीं, आपका जितना बिजनेस को मैं समझ रहा हूँ, आपको स्टेट में ही जाना पड़ेगा। और स्टेट के लिए आपको एप्लीकेशन, इसमें भी एक ट्रिकी थिंग है कि जब आप एप्लीकेशन करते हो ना, तो अगर आपने खुद एप्लीकेशन किया हुआ है तो वो अलग चीज है। बट आपको ना टेक्निकल जो जिनको इसके बारे में पता है उनके थ्रू ही करना चाहिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। द रीजन इज कि वो एप्लीकेशन इटसेल्फ इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको डायरेक्टली वहां पे लेके जाएगा। और लास्ट ईयर मैंने 2 मैन्युफैक्चरिंग मीन्स आप फ्रूट्स के लिए काम करते हो, वो वेजिटेबल्स के लिए काम कर रहे थे। उनके यहाँ पे भी वो मीन्स वो लेडी मुझे बोल रही थी कि सर मैंने लास्ट टाइम मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था और इस बार आप लाइसेंस क्यों करवा रहे हो। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मीन्स वो ओनियन लेते थे और उसको जस्ट प्रोसेस करके उसको करते थे। तो सेम वे से वो एप्लीकेशन प्रोसेस में भी बहुत मैटर करता है कि आपका लाइसेंस में जा रहा है या रजिस्ट्रेशन में जा रहा है। सर, तो मार्केटिंग हम ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी कर सकते हैं अगर हमारा स्टेट रजिस्ट्रेशन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का स्टेट रजिस्ट्रेशन हो? नाउ ये जो क्वेश्चन है ना, अभी उसको सडनली 180 डिग्री चेंज हो जाता है। आप मार्केटिंग भी कर रहे हो तो मार्केटिंग के लिए वो आपको अलग से लाइसेंस है। ओके, वंस यू अप्लाई फॉर द मार्केटिंग इन मल्टीपल स्टेट, आपका सेंट्रल में चला जाए। देन रजिस्ट्रेशन इज वेरी मीन्स आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आप मल्टीपल एरियाज में मार्केटिंग कर रहे हो और आपका रजिस्ट्रेशन है, तो इमीडिएटली आपके ऊपर एक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। आई एम नॉट सेइंग कि एक्शन होना चाहिए, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट ये पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। यू आर एक्सपोज टू मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस। एक्चुअली वो मैडम सिंधुदुर्ग में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और शायद बेंगलोर में उनका एक आउटलेट है, तो वो तो फिर ये मल्टी स्टेट हो गया ना? हाँ, मल्टी स्टेट हो गया। अभी ऐसी मार्केटिंग FSSAI के लिए ना जो डेफिनेशंस है ना वो थोड़े से समझने पड़ेंगे। अभी ना ये स्कोप में मैंने कवर नहीं किया क्योंकि ये डेफिनेशंस बहुत मैंडेटरी। अगर वो वहां पे शॉप है, उनका एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ से वो सिंधुदुर्ग से लेके जा रहे हैं और बेंगलोर में वहां पे है, तो जो बेंगलोर का शॉप है वो शॉप जो है वो आपके स्टेट के प्रीव्यू में रजिस्ट्रेशन में भी जा सकता है। ओके, बट जो जहां से वो सप्लाई कर रहे हैं, सिंधुदुर्ग से वो जो सप्लाई कर रहे हैं, वो सिंधुदुर्ग जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, उनको लाइसेंस में चला जाएगा और वो सेंट्रल लाइसेंस में चला जाएगा। क्योंकि अगर वो सिंधुदुर्ग में भी सप्लाई करते हैं और प्लस वो बेंगलोर में भी सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 2 स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रीव्यू आ जाता है।
सो ये कैसे होता है कि हम मीन्स थोड़ा सा सबको बता दूं कि ये जो ना केस जो है ना, हर केस के ऊपर हर एक चीज का प्रीव्यू चेंज होता है, बहुत चेंज होता है। मीन्स शायद जितना हमने समझा है उसके अलावा भी बहुत सारे स्कोप्स होते हैं जिसके ऊपर पूरा सिचुएशन चेंज होता है। जैसे मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ किसी भी लोगों को, मैं जो गाइडेंस देता हूँ ना, तो मुझे ना जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं या हम वकील के पास जाते हैं ना, तो हम सब इंफॉर्मेशन उनको देते हैं। सेम वे जब हम किसी कंसल्टेंट या किसी एक्सपर्ट के साथ जाते हैं ना, तो आपका पूरा 360 व्यू आप जब बताते हो तो उसको किस तरीके से हम फिट कर सकते हैं, ये केस टू केस बेसिस पे चेंज हो सकता है। और बहुत ड्रास्टिक चेंज होते हैं। ऐसे नहीं कि एक चेंज जो है, लेट सपोज मैं विक्रम हूँ, मेरा चेंज शायद XYZ पर्सन को क्लब नहीं हो सकता है, या मैं सेम रिप्लिकेट XYZ चीज के साथ नहीं कर सकता। ओके सर, तो कोई एक्सपर्ट ऐसे मिल सकता है या फिर आप सजेस्ट कर सकते हैं क्या, जो इस बारे में हमें You can connect me. You can connect me on my number. Or see, I'm not promoting anything for means मैं इसमें क्या है कि मैंने बहुत सारे लोगों को बेनिफिट किया है। अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस में अगर बताऊं कि मैं मेरे ऑफिस के वर्क के अलावा मैंने कम से कम 60 to 70 लाइसेंसिंग को गाइड किया हुआ है, सक्सेसफुल गाइड किया हुआ है। कहीं पे मैंने उसको मोनेटाइज भी किया है, कहीं पे मैंने मोनेटाइज भी नहीं किया। बहुत सारे लोगों का मैंने गाइड करके, लुकिंग एट द बिजनेस मीन्स आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग कि मेरे पास ही आ जाओ। आपको कहीं पे भी, आपको लोकल भी कोई मिलता है तो उनकी एक्सपर्टीज आप यूज करो टू गेट अ लाइसेंस, क्योंकि ये ऐसी चीज होती है कि आपको ट्रबल करती है, ना कि जो मीन्स कहीं सुनाई बातों से दूसरे जो लोग करते हैं, ऐसे लोगों के पास मत जाइए, या ऐसे लोगों के पास से कंसल्टेशन मत लीजिए। जो क्रेडिटेबल सोर्सेस है उनके थ्रू ही आप करें, तो आपको डेफिनेटली गाइड मिलेगा। आपको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, कैसे होना पड़ेगा, कि आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, आई टेक एन एग्जांपल ऑफ जाम। अगर मैं जाम मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो मेरे प्रोडक्ट में मैं सिट्रिक एसिड, एग्जांपल के लिए समझिए कि सिट्रिक एसिड में 2% डाल रहा हूँ, तो मुझे 1.5% डाल के मैं वो प्रोडक्ट फिट कर सकता हूँ मेरे इसमें। तो रेसिपी इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल पार्ट। अगर मैं 2% GMP लिमिट है, बट अगर 2% यूज करते हो तो वो प्रोडक्ट जाम कहा ही नहीं जाएगा FSSAI के थ्रू। भले ही वो जाम दिख रहा है, सब कुछ है, बट वो प्रोडक्ट जाम होगा ही नहीं। सो बेसिक प्रॉब्लम क्या आता है कि आपको गुड कंसल्टेशन बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि आपका प्रोडक्ट नीड क्या है, आपका ऑपरेशन नीड क्या है, आपका बिजनेस कैसा। जब भी मैं किसी को कंसल्ट करता हूँ, मैं खुद भी जब किसी को कंसल्ट करता हूँ, तो मैं बिजनेस को पूरा समझता हूँ कि आपका बिजनेस कैसा है। आपका इवन मुझे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो कहाँ से आपका मटेरियल आ रहा है, टू द कहाँ आपका जा रहा है और कहाँ तक आपका सेल है, ये सब समझने के बाद जो गाइडेंस आपको मिलता है वो करेक्ट गाइडेंस मिलता है। शायद कोई एक्सपर्ट भी होगा और आपको आधा इंफॉर्मेशन आप शेयर करोगे तो आपको करेक्ट पिक्चर नहीं आएगा मैडम। और ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे जो कंसल्टेंट है ना, उनको झगड़ा करने के लिए भी आ जाते हैं। इट इज लाइक ए डॉक्टर थिंग कि मेरा पेशेंट ट्रीट नहीं हुआ क्योंकि आपने आधा इंफॉर्मेशन दिया। आई एम नॉट कंपेयरिंग, डॉक्टर इज अ वेरी नॉवल पोजीशन, बट आई एम नॉट कंपेयरिंग विद देम। बट ये होता है मैडम जनरली फूड इंडस्ट्री में। आप बाद में कनेक्ट करिए सरिता जी, सर आपको गाइड कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू। यस, राकेश जी आप भी कनेक्ट करिएगा, आपको ओवरऑल इंडिया आपके प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने हैं। एंड सुनील जी, आप भी, सुनील जी का भी एक प्रोडक्ट है। सर मुझे अभी पूछना है कि मेरा प्रोडक्ट अभी अपने महाराष्ट्र से कर्नाटक में जाता है, आवाज आ रही? मतलब इधर लेके कर्नाटक में यूज करते हैं। ओके, तो इसके लिए मुझे पैकेजिंग के बोल ऊपर दो कुछ ना फोन एक्स्ट्रा करके। डालना पड़ेगा क्या, कि ओनली फॉर महाराष्ट्र वगैरह? नहीं नहीं, आपको
शायद आपने मिस इंटरप्रेट किया, बट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो इट इज अ कंट्री स्पेसिफिक ओरिजिन। मीन्स मैं इंडिया में पैक इन इंडिया, मेड इन इंडिया या इस तरीके के जो कंसेप्ट है ये पहले से ही फूड इंडस्ट्री में है कि अगर मैं लेट सपोज अल्फांसो मैंगो मैं आउट ऑफ इंडिया इंडोनेशिया में से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ और वो मैं यहाँ का रत्नागिरी करके अम्बा बेच रहा हूँ, ऐसे प्रैक्टिसेस भी हो सकते हैं। तो ये प्रैक्टिसेस ना हो इसके लिए जो कंट्री ऑफ ओरिजिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्टेट रेफरेंसेस, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये स्टेट कंट्री को रिप्रेजेंट करता है ना कि स्टेट को रिप्रेजेंट करता ओके, मतलब पैकेजिंग के ऊपर मुझे ओनली फॉर महाराष्ट्र से डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है सर। ओके बट आपको नहीं सर, हाँ पैक इन इंडिया या प्रोडक्ट ऑफ इंडिया ये डालना मैंडेटरी है। ओके, मैंने यस मेड इन इंडिया है सर। हाँ, मेड इन इंडिया या उसको अगर आप पैक कर रहे हो तो पैक इन इंडिया, ये वर्ड पैक इन इंडिया इज इम्पोर्टेंट। मेड इन इंडिया आप एडिशनल डाल सकते हो बेस्ड ऑन योर मार्केटिंग रिक्वायरमेंट और अदर रिक्वायरमेंट्स। अच्छा राकेश वर्मा जी, आपको कुछ पूछना था? हाँ जी मैडम। मैं सर विक्रम सर एक जी चीज पूछनी थी। मेरा रजिस्ट्रेशन करवा रखी है और फ्लिपकार्ट अमेजोन पे और अपनी वेबसाइट पे मैं इसको बेच रहा हूँ। करेक्ट। हाँ, और इसके अलावा बेसिकली हमारा जो फ्रूट चॉकलेट है शादियों में भी गिफ्टिंग में भी जाता है, वहां पर बहुत अच्छा सेल है। लेकिन वहाँ बिल की बड़ी समस्या है, वो बिल नहीं लेते, वो विदाउट बिल ही लेते हैं सारा। तो उसके चक्कर में हमारी सेल जो है वो सेल तो हम बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन बुक्स में नहीं आ रही। ओके, ये क्वेश्चन जो है ना इसको मैं दो वे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट इज आपका रजिस्ट्रेशन है, आप क्या जी मैंने जैसे बताया कि अगर आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो इन मीन्स घर पे भी अगर चॉकलेट बना के एक मोल्ड में डाल रहे हो तो जी दैट इज आल्सो नॉट कंसिडर एज अ रजिस्ट्रेशन। अगर किसी ने भी वो एप्लीकेशन आपका प्रोसेस किया हुआ है या आपने किया हुआ है, वो सबसे पहला प्रॉब्लम है। अभी उसका जो सेकंड पार्ट है, आपका जो बिलिंग बनता है या कोई भी बिलिंग होता है उसके ऊपर एफएसएसआई जी का नंबर डालना मैंडेटरी है। लास्ट ईयर से ये मैंडेटरी किया है कि आपका इनवॉइसेस जनरेट होता है या कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो या बुक में रखना है नहीं रखना है, जब तक आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो और उसके ऊपर आप लाइसेंस नंबर, अगर आप देखोगे कि यू गो टू एनी रेस्टोरेंट नाउ एफएसएसआई नंबर इज मैंडेटरी, अगर आपको नहीं मिलता है यू हैव वेरी लीगल राइट। एक एफएसएसआई का एक पोर्टल अभी ऑनलाइन उन्होंने लॉन्च किया है, वो बेटा लेवल पे चल रहा है या ऑलमोस्ट अभी उसका फाइनल वर्जन भी चल रहा है। दैट आप उसको उसमें जाके आप फोटो निकाल के डाल सकते हो और वो ऑफेंसेबल हो जाएगा कि इवन दो आपका रजिस्ट्रेशन है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, इट गोज वेरी रॉन्ग इन बिजनेसेस। और ये केसेस हुए हैं, ऐसे नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये केसेस नहीं हुए, ऐसे नहीं है। बट वॉट एवर द जो कंजम्पशन के लिए मैंडेटरी है या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, मैं बिजनेस को भी सप्लाई कर रहा हूँ, तो ऑल इनवॉइसेस शुड हैव एफएसएसआई लाइसेंस। अगर वो बिलिंग नहीं हो रहा है तो देन यू विल हैव अ प्रॉब्लम। नहीं सर, बिल तो हो रहा है लेकिन वो हम कैश में फिर बिल काटने पड़ रहे हैं। एफएसएससी उसमें हाँ क्या, प्रिंटेड है, वो कैश में हमें काटना पड़ रहा है। सो मीन्स आई थिंक वो फिर आपके अकाउंटिंग रिलेटेड इशू होगा, क्योंकि मैं जैसे समझ रहा हूँ कि आपको कैश आ रहा है, मीन्स मनी इन फॉर्म ऑफ कैश आ रहा है। जी जी जी, कैश में सो सर। तो वो मोर एवर जो है वो अकाउंटिंग रिलेटेड पार्ट है जिसमें मैं आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं मीन्स रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, जो फूड रेगुलेशन है, आपका वेट्स एंड मेट्रोलॉजी है या आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये सब चीज में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये रजिस्ट्रेशन जो हमने करवा रखी है उस पे हमने जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट, वो तो पूरे इंडिया में कहीं भी माल जा सकता है, तो उसके लिए करेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर रजिस्ट्रेशन नहीं रजिस्ट्रेशन में? नहीं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन मीन्स अगर आप प्रोसेस, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप अगर मैन्युफैक्चर या प्रोसेस कर रहे हो, मीन्स मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं ना कैडबरी
का जो चॉकलेट है, वो चॉकलेट लेके आता हूँ घर पे, उसको मोल्ड करता हूँ और मोल्ड में डाल के उसका एक नए शेप में फॉर्म कर। ओके, बट अगर मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ किसी भी वे से कि मैं उसको मोल्डिंग कर रहा हूँ, उसको फिर से शेपिंग दे रहा हूँ, तो देन आपको एफएसएसआई लाइसेंस लेना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी, मीन्स रजिस्ट्रेशन आपकी पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू सर। Can I have a question, या Uday sir? या Yeah, thank you very much, Vikram sir. It's being a great understanding towards the food licensing and everything. I have just a small question. Ki I'm into the business of we develop material which is replace single-use plastic, ओके and in that you can carry the food. ओके Okay, for example, I want to buy something from Zomato or Zomato के जो bags होते हैं, so that bag is possibly of ours as well. करेक्ट। So do we need the licensing for that as well to carry the food? नो, No. अब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और मैं इसको ना आपको ना ये वॉट एवर इट इज दैट शुड बी कंप्लाई विद दिस थिंग, अब आपको लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। Okay. Okay, FSSAI is not always talking about the licensing for the packaging material. Okay, Mm-hmm. packaging material का अलग से लाइसेंसिंग और वो सिस्टम इकोसिस्टम चलता है। Okay. बट यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट पैक जो है, जो आप जोमेटो के साथ रिप्लेस कर रहे हो या आपके फूड प्रोडक्ट को पैक कर रहे हो, उसको टेस्टिंग का रिक्वायरमेंट ये स्टैंडर्ड थ्रू आपको अचीव करना पड़ेगा। Oh, so I You need to do the should, testing. So yeah, for this, it will go for the food FDI के पास जाएगा या किसके पास जाएगा? मतलब नहीं, फूड एंड ड्रग। हाँ करेक्ट। अब जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो एफएसएसआई नोटिफाइड लैब्स है, मैंने आपको चाहिए तो मैं रिकॉग्नाइज नोटिफिकेशन लैबोरेटरीज जो है ना, उसका लिस्ट आपको मैं शेयर कर सकता हूँ। वो लैब से आप टेस्टिंग करोगे तो दैट सफाइज द रिक्वायरमेंट। अब इसमें क्या है कि फूड प्रोडक्ट को टेस्टिंग करना और पैकेजिंग मटेरियल को टेस्टिंग करना, ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, सर्टेनली करेक्ट। सो तो फूड प्रोडक्ट को टेस्टिंग करने वाला एस्पेक्ट अगर आप कवर करोगे तो फिर आपको मीन्स ये स्टैंडर्ड समझना बहुत डिफिकल्ट होगा। आपको लेबोरेटरी को सर्च करना डिफिकल्ट होगा कि लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट डीएनवी है या एसजीएस लैब्स है। एसजीएस लैब को मैं एग्जांपल लेता हूँ। एसजीएस लैब में फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो फूड टेस्टिंग फैसिलिटी है, बट पैकेजिंग मटेरियल टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है। बट वही अगर मैं लेट सपोज टीवी लैब लेता हूँ जो पुणे का लैब है, उनके यहाँ पे फूड टेस्टिंग फैसिलिटी भी है और पैकेजिंग मटेरियल टेस्टिंग फैसिलिटी भी, और वो जो है वो दोनों चीज के लिए एफएसएसआई अप्रूव्ड लैब है। ओके। सो आप सिर्फ लैब का नेम देख के आप उसको कंक्लूड नहीं कर सकते कि मुझे ये लैब से टेस्ट करना है। आपको उसका टेस्टिंग का प्रीव्यू देखना है कि कौन से प्रोडक्ट का टेस्टिंग हो रहा है, और वो एफएसएसआई एक्रीडेटेड या नोटिफाइड लैब है या नहीं। ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। आपको डायरेक्टली इंपोर्ट्स कुछ नहीं होगा, बट एफएसएसआई विल डेफिनेटली मेक एक्शन कि आपका पैकेजिंग मटेरियल सब स्टैंडर्ड है। लाइसेंस के ऊपर आपको इशू नहीं आएगा, बट लाइसेंस नहीं है इसका, एफएसएसआई का लाइसेंस नहीं है, उसमें इशू नहीं आएगा, बट आपका पैकेजिंग मटेरियल सब स्टैंडर्ड है करके वो आपके ऊपर केस या आई एम नॉट गोइंग इनटू द वर्स्ट केस, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो केस आपको ऑन दैट। हाँ या दे कैन सू यू ऑन अ कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। Because since long I'm listening you, and there are so many things in that confuses us like anything. But certainly I will connect you individually. That will help us. To understand. In my personal capacity, I'll help you. Means मैं ना पैशनेटिंग फूड प्रोफेशनल, मैं ना इंडस्ट्री को जितना मुझे बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो प्रैक्टिसेस है उसको किस तरीके से सोल्यूशन ला सकते हैं, ये मुझे खुद फैसिनेट करता है।
इसके लिए मैं बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ गेटिंग देयर इशू सॉल्व. That's Sir, great. there is one question in chat box. Okay. वैभव you, sir. बुलटूकने काहीतरी विचारलंय बघा. Just. If we have any secret ingredient or product, we need to mention वैभव, it are you in the- online? Yes. Yes, ma'am. Very good question. Very nice. See, अब जब सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना, तो आपको बताना पड़ेगा. ओके, इंग्रेडिएंट में आपको देना पड़ेगा. बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि अब मैं ना एक घर का एग्जांपल लेता हूँ. मेरी माँ या किसी की माँ जब खाना बनाती है ना, तो उसके हाथ में एक अलग टेस्ट होता है. मीन्स, और वो टेस्ट ना हर बच्चे को वो टेस्ट पसंद होता है अपने माँ का. ओके, तो ये टेस्ट कैसे डिफरेंस होता है? तो क्या होता है कि उसकी एक मेथोडोलॉजी होती है बनाने की, या उसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है. वो आपको अच्छा लगता है. जब ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट वो कितना डाल रहे हैं, मीन्स एग्जांपल मैं नमक की ही बात लेता हूँ, तो नमक में कितना डाल रहा हूँ ये डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है लेबल में. बट मैं नमक डाल रहा हूँ ये डिक्लेयर करने की जरूरत है. इट इज लेबलिंग इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग इट. सो आपको वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, बट उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं. मीन्स केस टू केस बेसिस पे होता है कि आपको अगर बताओ, ये फूड इंडस्ट्री का थोड़ा सा ग्रे एरिया मैं थोड़ा सा बताता हूँ. हमें पता है कि मोनोसोडियम ग्लूटेनेट अलाउड नहीं है फूड इंडस्ट्री में. एग्री? बहुत सारे लोगों को पता होगा. एमएसजी बोलते हैं. अजिनोमोटो. अजिनोमोटो इज नॉट अलाउड इन फूड प्रोडक्ट. चाइनीज आइटम में जाता है जो. चाइनीज आइटम में जाता है. बट हम बोलते हैं कि नहीं, फिर भी चाइनीज आइटम में डालते हैं. सो वो अजिनोमोटो नहीं डालते. उसी के टाइप का जो दूसरा मटेरियल है, सेम कंपोजिशन, फिर सिर्फ उसका नाम अलग होता है. सी, दिस इज अ वेरी ग्रे एरिया. बट उस ग्रे एरिया को कौन सा अलाउड है? मीन्स मोनोसोडियम ग्लूटेनेट इज नॉट अलाउड, बट IG4 is allowed. It is also functionally thing is the same. बट उसको डिक्लेयर करना जरूरी है. मीन्स मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि बहुत कम लोग जो है ना लेबल देखते हैं. इफ आई एम आस्किंग कि हम डेली प्रोडक्ट कौन सा लेते हैं, आप कितने लोगों को पता था कि फोर्टिफिकेशन होता है आपके ऑयल में, और जो आप खा रहे हो रिफाइंड ऑयल है या कौन सा ऑयल है, ये सब आपके लेवल पे है. प्रॉब्लम ये नहीं है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर हमें उल्लू बनाते हैं. सॉरी, मैं थोड़ा सा एक दूसरे वे से बोल रहा हूँ, बट हम खुद उल्लू बनते हैं. बिकॉज दे ऑलरेडी थिंक कि हाँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ. अनदर थिंग, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, बट एक आइसक्रीम होता है, उसमें कितने लोगों ने लेबल देखा हुआ है कि उससे आइसक्रीम की लेबल क्या होता है. उसमें आपका, उसमें जो है वो आपका ऑयल यूज करके वो आइसक्रीम बनाया जाता है. एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इज नॉट नोइंग इट. एंड फूड बिजनेस ऑपरेटर भी यही बोलता है कि हाँ, मैंने तो डिक्लेयर किया है. कि मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैं आपको दूध वाला आइसक्रीम को खिला रहा हूँ. मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैं दूध वाला नहीं खिला रहा हूँ या खिला रहा हूँ. मैंने लेबल पे दिया हुआ है, आप नहीं पढ़ते हो, आपका प्रॉब्लम. और ये ऐसे केसेस, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस गोज इनटू द फेवर ऑफ कंपनी, नॉट इन द फेवर ऑफ द कंज्यूमर. और ये सबसे बड़ा चैलेंज है. इसके लिए मैंने जब बोला ना कि ये चीजें जो हो रही है ना, ये बहुत सारा अनअवेयरनेस इन आर इंडिया. आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंडिया, क्योंकि ये चैलेंजेस हम सिर्फ एजुकेटेड नहीं है टुवर्ड्स फूड सेफ्टी. हम हर एक चीज के लिए बात करते हैं. जैसे
हम जनरली सेक्स एजुकेशन के लिए बात करते हैं, हम अदर ऐसे जो टैबू वाली चीजों के लिए बात करते हैं, बट फूड के लिए अवेयरनेस हमारा बहुत ही ज्यादा जीरो है, हम ट्रू बहुत ट्रू ही ज्यादा पीछे है। यस सर। ठीक है, चलिए सबका शंका समाधान हो गया है। 1 बजने को आया है, सर को भी खाना, हमें भी खाना खाना है। Yes, yes. We are running out of time. 12:30 was the time of us. अभी थोड़ा हाँ लेट हो रहे हैं। किसी को कोई हाँ क्वेश्चन रहेगा? सर, Yes, it is a very good information. Yeah. Okay. ये correct. Who are not attending this program? Who are not attending? Yogesh Patil was not there, sir. No, he was there in between. He was Okay. coming and going. Even Rakesh Patil. who are the copy is not attending? उनको remove करो. हाँ, Copy कौन है? सर ये बाद में 4-5 लोग को क्या अटेंड करें नहीं सर? नहीं, कॉपी को अभी रिमूव करो. कॉपी को आई विल नॉट टेक इट. सर ने अटेंड किया था, ज्योति ठाकरे ने अटेंड किया था, उनको सब रिमूव कर दो यहाँ से अभी. जी सर. आई विल नॉट कंसिडर ऑफ henceforth. जी सर, बाद में करते हैं ये. नहीं सुनो कुछ क्वेश्चन अरे है? स्टार्टअप कौन अटेंड नहीं किया था? नहीं, सबने अटेंड किया, लेकिन बीच बीच में आ रहे थे जा रहे थे, शायद फोन आता है ना, तो वो बंदा फोन अटेंड करता है फिर से वापस आता है, ऐसा इट्स गोइंग ऑन, बट दे आर अटेंडिंग इट. सो अभी किसी को कुछ क्वेश्चन है? नहीं कॉपी कौन अटेंड किया था? कॉपी कौन अटेंड किया था? थोड़ी देर के लिए सब अटेंड किए थे सर, थोड़ी बीच में. सरवना पाटिल ने, ज्योति ठाकरे ने अटेंड किया था. यस अटेंड किया था सर. किया था? आर यू श्योर ऑफ इट? यस सर, आई एम श्योर अबाउट इट. सर अशोक सर, हाँ, थैंक्स गिविंग आप देंगे आपके दोस्त? नहीं, ये लोग अटेंड नहीं किया तो उनको स्ट्रेट अवे रिमूव कर दो. जी सर. आई डोंट केयर फॉर दिस थिंग्स. जी सर, आप थैंक्स गिविंग दीजिए. मैं देता हूँ. थैंक्स गिविंग मैं दे देता हूँ मैडम. हाँ ठीक मैं है. देता हूँ थैंक्स गिविंग. बी केयरफुल है ये, मैं कुछ सुनता नहीं है. ज्योति ठाकरे, सरवना पाटिल कोई अटेंड किया था? सुंदरमती अटेंड किया था क्या? अटेंड किए थे सर. I was admitted them. Yes, they were there. Yes sir, I am present. संग्राम पाटिल सर. कृष्ण प्रसाद सर वहाँ थे. Yes sir, सब. नहीं, कृष्ण प्रसाद आई नो, कीर्ति जलगांवकर आई नो, ओके, सुंदरमती आई नो, उसका अलावा कोई अटेंड किया था ना? नहीं किया था. हाँ, कृष्णा प्रसाद सर ने भी अटेंड किया है. ठीक है सर. ओके सर, लिसन टू मी. कृष्णा प्रसाद, ये बोलो ना, कौन कौन अटेंड नहीं किया था आज प्रोग्राम को? पांड्या सर नहीं थे, और डीयू पाटिल सर नहीं थे, थे, और बाकी सब आए गए. ऐसा था. नहीं, उनको बोला ये नहीं है. इसको उनको बोलो, लिख दो. ये कोई ये नहीं है. हाँ, इधर आने का जाने का ऐसा कुछ नहीं है. जी सर. ओके सर. थैंक यू पत्रिकर साहब. ओके सर. गिविंग यू सच ए एक्सटेंसिव लेक्चर. Really, you are a family of our REBI. आप इतना बात करते हैं, ओके, और आप इतना चीजें समझाते हैं ना, इसीलिए आई एम वेरी टाइट अबाउट दी आवर हु आर लर्निंग और नॉट. हाँ, मेरे को बताओ तो कौन अटेंड नहीं किया था हमारा ये से? स्टार्टअप में सबने अटेंड किया सर. सीधा बोलो. यस सर, सब अटेंड किया था. यस सर. ओके, वेरी गुड. आई बिलीव मिस्टर ये कोरे एंड प्रति मैडम. ओके, the day is good. Okay, so that's why I thanks to our Patrikar Saab, because he is staying in our building. Really, it is a good lecture, and he is explaining such a way that as if he is
thinking that you are a family member of Patrikar Saab. Okay, thank you, sir. Okay, we are looking forward your help in near future. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Thanks. And आपका आज का लेक्चर का 4000 उनको 4000 में पेमेंट करने का. ओके हेलो. यस सर, यस सर. 4000 उनको पेमेंट करने का. 4001 00. ओके. नोटेड सर. and जो प्राची मैडम है ना हमारा पात्रीकर साहब. यस सर. जो प्राची मैडम है ना, शी इज ऑन बिहाफ ऑफ मी. ओके. शी इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ मी. ठीक है सर. ओके सर. किंतु मैं नहीं रहूंगा, मैं कहाँ इंस्टीट्यूट में रहूंगा ना. शी इज वर्किंग इन बिहाफ ऑफ मी. Thank you. Yes. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. All of you have a good day. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Yeah. Bye. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Good session, sir. Thanks. Thank you so much. Thank you for all for giving us time. We are ending up the session. Thank you. Okay. Thank you, Vikram sir. Yeah.